Just the three of us are there. No, there were two who had joined already. Acha. They left. So let's wait for one or two of the participants to come. Oh, Bhaiya has already started, so we can go live. Bhaiya has not gone live yet. He's just started the recording. Okay. So once he goes live, then I will start. I'll just recap the first 2 days. Yeah. Yes. Good evening, everyone, and welcome you for the third day of this wonderful series that we are having with Niti Didi. So we are talking to youngsters, youth, age 18 to 22. Today is the third day. On the first day, Didi told about how do you set your goal? What should be your goal? On what basis do you set your goal? Do you set your goal on the basis of money, beauty, designation? And why are you setting this goal? And what are you doing? So there she came with the 2 Y's and 2 W's and the 2 H. That is what, why, how, and how much. Whatever we are doing, we should know why we are doing, what we are doing, how we are going to do, and how much are we going to do. और रादर हिंदी में 4 केस, क्यों, कैसे, कितना और क्या, इन पे यदि ध्यान रहेगा तो हम अपना गोल भी अच्छे से सेट कर पाएंगे और आगे हम हमेशा खुश रह पाएंगे. To be happiness, where do we want to be happy? We want to be happy at all the 4 levels of family, individual, society, and nature. And what are the dimensions of happiness? We need to be happy in our thoughts, our actions, and also in our work. Mental happiness is the only happiness that makes us happy. Physical things do make us happy, but they're very temporarily or very short-lived. If you want to be in a state of continuous happiness, it has to be the mental happiness that will take us a long way. And when we start working on ourselves, we need to work that do we react to people or do we respond to people? We need to increase our receptivity as well as capabilities to be a good human being so that we are responding and not reacting. उसके लिए हमें स्वयं मूल्यांकन करना होगा. That is, how do you analyze yourself? Then when are we getting affected by others? Incapability is our incapability. दूसरों की, और I am forgetting that word, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित अगर यदि हम हो रहे हैं तो ये हमारी अयोग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही हमारी योग्यता है. That is, getting affected by others' incapabilities is our incapability, and getting unaffected by others is my capability. Then Didi also spoke about comparison and competition, which we will continue today. यदि हमें कंपैरिजन करना है या प्रतियोगिता करनी है तो स्वयं में, स्वयं के लिए और स्वयं से ही होनी चाहिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, ना कि दूसरों से. It is RGBG, that is रात गई बात गई, but here we will not follow that. We will keep what we learned yesterday and move ahead from that. Over to you, Niti Didi, for today's session. Thank you so much, Babi. Thank you so much for wonderful briefing. आपने जो 3 दिन का इतना बढ़िया से करके रख दिया. Thank you so much. Also इसमें हमने एक point लिया था, basically, which is very important, was carefulness, alertness. कि अगर हमको सही रहना है, हमको गुस्सा नहीं करना है, and if we want to be, like we want to check the points where we can analyze and check ourselves, कि कई बार हमको गुस्सा करने के बाद में याद आता है कि हमने गलत किया और हमने गुस्सा किया, तो हमको पहले से हम चेक रखते हैं, याद रखते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो उसमें हमको पहले से ही ध्यान होता है. जैसे उसमें भी एक छोटी सी एक लिंक बता दूं कि जब 35 years बैक जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसा होता था कि मैं बहुत जल्दी मतलब घबरा जाती थी, कभी किचन में काम नहीं किया था,
तो दूध रोज उफन जाता था मुझसे, दूध रोज गिर जाता था और प्लेटफॉर्म में और सब में। तो बिफोर माय मदर इन लॉ कुड कम, आई यूज्ड टू जस्ट पूरे उस दूध में पानी डाल देती थी ताकि वो वापस क्वांटिटी में पहुंच जाए, और पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह धो देती थी। तो जब माँ पूछते थे कि क्या बात है भाई सुबह से इतना साफ सफाई, तो आई यूज्ड टू टेल हर कि नहीं नहीं वो कॉकरोच वगैरह आते होंगे रात को, तो इसलिए मैं सुबह उठ के आई क्लीन अप एवरीथिंग। सो इन ऑर्डर टू हाइड वन रॉन्ग आई यूज्ड टू टेल लाइज। दैट वाज व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, कि हम एक गलत के पीछे हम चीजों को गलत करते हैं और डर में चले जाते हैं। एंड आई यूज्ड टू बी रियली वेरी अफ्रेड, मैं बहुत डरती थी, क्योंकि कभी तो जिंदगी में हमने काम नहीं किया था, किचन में काम नहीं किया था, और हमको कभी रिलेशनशिप्स की कोई समझ भी नहीं थी। 20 साल की शादी हो गई थी, तो कैसे करना चीजें वो नहीं पता होता था। तो ऐसा 8-10 दिन तक के चलता रहा। फिर जब दूध वाला भैया, सुबह शंकर भैया आया, तो माँ ने कहा कि भाई तुम्हारा तो मैं पैसा काटूंगी, तुम बहुत ही पतला दूध ला रहे हो, चाय अच्छी नहीं बन रही है, दूध कोई नहीं पी रहा है। एंड दैट वाज द थिंग दैट रियली ब्रॉट मी, मेड मी फील बैड, कि अरे मेरी गलतियों के कारण किसी और को का पैसा भी कटेगा और उसको डांट भी पिट रही है। देन आई व्हाट आई डिड वाज कि मैं अलर्ट रहना शुरू करी, मैं केयरफुल रहना शुरू करी। मैंने हड़बड़ा के काम करना बंद कर दिया, कि जब मैं दूध उबालती थी तो मैं सिर्फ दूध उबालती थी और मैं दूसरा काम नहीं करती थी, क्योंकि उसी चक्कर में दूध उफन जाता था। तो देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स इन एवरीबडीज लाइफ। वी वांट टू बी मल्टीटास्किंग, हम बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हैं, और बहुत सारे काम में फिर गलतियां हो जाती हैं या कुछ में गलतियां हो जाती हैं, एंड देन वी हाइड। So that was what one point which I was trying to bring attention of everybody। और उसमें से बच्चों ने कुछ ये क्वेश्चन पूछा भी था कि फियर ऑफ फेलुअर को वी वर डिस्कसिंग yesterday, बेसिकली फियर ऑफ रिस्पेक्ट, मान भय। 4 किस्म के भय थे, उसमें से हम मान भय में ही पूरा हमारा उसमें लग गया था कि कैसे हम मान सम्मान, कैसे हम बिल्डिंगों से, कपड़ों से, एजुकेशन से, क्वालिफिकेशन से, गाड़ियों से, गहनों से, साड़ियों से और रूप से और बैंक बैलेंसेस से सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आचरण से सम्मान पाने की कोशिश नहीं करते। We don't make our own self as a criteria, our own behavior as a criteria to get the respect. So that is how we've started। And yes, now Lalit, now Lakha bhaiya, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बाद में कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं जो इंग्लिश ही समझते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू कवर इन बोथ द लैंग्वेजेस। तो शुड वी गो अहेड भाभी कि हम फियर को एक बार और हम 4 किस्म के फियर बता देते हैं, जिसमें मान भय पे कल हम बात करते हैं, फियर ऑफ रिस्पेक्ट, एंड देन देयर इज फियर ऑफ लूजिंग वेल्थ, फियर ऑफ लूजिंग बॉडी, एंड फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस, पद जो हमको मिला हुआ है। देयर फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस में मैं कह रही थी कि हम अभी इंसान होके पहले जन्मे हैं, कि हमने वेरी गुड रिचिका बेटा जी, वेलकम। वी स्टार्टेड बट वी आर जस्ट डूइंग दी पिछले का सेशन को हम कवर अप कर रहे हैं। तो फियर ऑफ लूजिंग द डेजिग्नेशन में ये हो सकता है कि पहला तो मुझे लगता था हमेशा कि मैं एक इंसान होके जन्मी हूँ, तो मेरा कर्तव्य पहला क्या होगा, इंसान होने का होगा। मेरी ड्यूटी पहले एक इंसान होने की होगी। मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जो होगी वो एक इंसान होके एज अ ह्यूमन बीइंग होगी। और एज कि मैंने जैन परिवार में जन्म लिया है, तो जैन की होगी, कि हिंदू की होगी, कि मुसलमान की होगी, कि क्रिश्चियन की होगी, कि सिख की होगी, कि किसकी होगी। सो दैट वॉज वॉट आई हैव प्रपोज्ड। और मैंने जैसे बार बार कहा था कि ये कोई भी उपदेश नहीं है, आप इसको माने, ऐसी हमारी किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। आप इसको जांचें, प्लीज कीप ऑन चेकिंग एवरी प्रपोजल विच वी आर प्रपोजिंग हियर विद इन योर सेल्फ। अब हर प्रपोजल को अपने भीतर में जांचें और देखें कि ये यूनिवर्सल लेवल पे सर्व मानव के लिए, फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं है। और यहाँ पे जितने भी नेचुरल सूत्र, नेचर के जो लॉ बताए जाएंगे, वो यूनिवर्सल हैं कि नहीं है। जैसे कल हमने एक बात की थी,
फियर के साथ में हमने फेथ की बात की थी, आस्था की बात की थी, और हमने प्रलोभन, टेम्पटेशन की बात की थी. देयर वर 3 पॉइंट्स, जिसमें फेथ में हमने कहा था, बिलीव्स को लेके हमने कहा था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बिलीव कि बिल्ली रास्ता काट गई, या कुंडली मिला के शादी करना, सो डज इट गो यूनिवर्सल और नॉट. तो शादियों के कुंडली मिला के भी करते हैं, बिना कुंडली मिला के भी करते हैं, डिवोर्स कुंडली मिला के शादियों के बाद भी होते हैं, बिना कुंडली मिला के शादियों के बाद भी होते हैं. सो डज रिलेशनशिप स्टैंड ऑन अंडरस्टैंडिंग, और डज रिलेशनशिप स्टैंड ओनली ऑन दीज बिलीव्स? सो दैट वाज व्हाट आई वाज प्रपोजिंग. मैंने प्रपोज किया था कि इस तरीके से भी हम एक विजन को डेवलप करें और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि यूनिवर्सली हम किस तरीके से सही हो सकते हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन था कल, व्हाट इज सक्सेस, फेलियर ऑफ फियर, फियर ऑफ फेल्यूर. हाँ, तो एक तो हम पहले देख लेते हैं कि फेल और पास हम किसको कहते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस में इज देयर फेल्यूर, इज दिस फियर, इज देयर एनी एग्जिस्टेंस जो काम कर रही है, अस्तित्व जो काम कर रहा है, वो क्या किसी फेल और पास से काम कर रहा है, किसी भय से कर रहा है, आस्था प्रलोभन से कर रहा है, किसी क्रोध और आवेश से कर रहा है, कि एग्जिस्टेंस में कुछ ऑर्डरलीनेस हमको दिखती है, कुछ व्यवस्था दिखती है, साथ साथ चलना दिखता है, को एग्जिस्टेंस दिखती है. तो इसको हम देखते हैं कि फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट, फियर ऑफ लूजिंग बॉडी. तो एक एक इसको देखेंगे कि मृत्यु कहाँ से हमको दिखती है. फियर ऑफ लूजिंग डेजिग्नेशन given by the society, या fear of losing मे बी कि हम कुछ हमको पद सोसाइटी में दिए हैं, और कुछ एक हमको मानव, हम परिवार में, जिस परिवार में जन्मे हैं, तो हम बेटी भी हैं. मैं ऐसा स्वीकार करती हूँ कि बेटी का भी एक पद है, वाइफ का भी एक पद है, माँ का भी एक पद है, और इस तरीके से वी आर एट डिफरेंट डेजिग्नेशन. तो हम वहां पे अपने उस माँ के साथ में हम अंधी ममता में हैं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना, उस जो बच्चा जिस एक्सपेक्टेशन से जन्म लिया है हमारे परिवार में और हमारे हमारे माध्यम से, वी हैव बिकम अ सोर्स where we have given birth to a child, so we must know what the purpose of child, what the purpose is there, what are the expectations of child. तो क्या हम वहां पे उस पद के साथ न्याय कर पाते हैं? क्या हम एक बेटी होके न्याय कर पाते हैं? क्या हम मित्र होके न्याय कर पाते हैं? क्या हम कलीग होके न्याय कर पाते हैं? क्या हम गुरु होके न्याय कर पाते हैं? क्या हम पत्नी होके, पति होके न्याय कर पाते हैं? So these are things, and fear of losing wealth, which we will discuss in the coming today topic, कि wealth और money में क्या अंतर है. So switching to the next slide, Bhabhi ji, kindly let's see कि existence, how is it working. And this is very interesting. This is one of my favorite topic. Yes, there it is. I think प्रकृति में 4 अवस्था. Yes. So let's see कि प्रकृति में 4 अवस्था कैसी हैं, और कैसे हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं. तो हम अपने आसपास की हर चीज को समझना चाहते हैं. We try to understand each and everything which is around us. और ये नेचुरल है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे ही हमसे क्वेश्चन को पूछते हैं कि ये भगवान क्या है, ये पत्तियों के रंग क्यों होते हैं, फूलों में रंग क्यों होते हैं, आलू को अंदर क्या है, आसमान के ऊपर क्या है. ये सब मेरे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं, और मेरे पास में आई हार्डली हैड आंसर्स टू दीज क्वेश्चन कि where does, who is putting colors in the flowers, why does the leaves are green, what is there above the sky, what is there inside the aloo, सो पोटैटो. तो मुझे ये सब चीजों के उत्तर नहीं होते थे. तो एक मानव का ये फ्रीडम टू थिंक मानव के पास में है, और वो इसलिए है कि वो चीजों को समझ सके, जान सके, यूनिवर्सली जान सके. जैसे कि एक आलू यूनिवर्सली आलू है, लोहा यूनिवर्सली आयरन इज यूनिवर्सली आयरन, एंड द एटम पार्टिकल्स इन इट आर identified by human being,
and there are this atom particle, and that is how we identify iron as iron, gold as gold, uranium and soil and stone and different kind of precious and semi-precious stones. And we identify different gases also. So that is how we see that we have that inner capability already within ourselves. We don't have to generate. हमारे भीतर में एक वो जांचने की क्षमता है. अज्यूम करेंगे तो ये छत के नीचे हम जिस विश्वास के साथ बैठे हैं कि ये छत नहीं गिरेगी, क्योंकि हमको लोहे के का जो इनेट नेचर है, लोहे का जो आचरण है, we believe in that it is going to keep things intact. We know it is low iron and cement and ether and mitti and gitti together has made this house, and this is, unless there is a major problem, it is not going to fall on me. And that problem can be because of human error also, and that problem can be earthquakes also. So इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको we have that innate capacity within us to know things and to check things. Why and what. Checking is through क्या, ये क्या है और ये क्यों है. So we see कि ये क्या है, ये पेन है, ये क्या, कौन सा पेन है, ये कैसे बना हुआ है, ये क्या, क्यों, कैसे, कितना, इसको हम देखते हैं. तो there are so many things around us. So let us think, we are just trying to work out कि प्रकृति में, existence में हम इसको एक अवलोकन करें. We are trying to understand कि is there fear, is there belief or faith system, or is there temptation, or is there anger or disorderliness in nature. प्रकृति किस तरीके से बनी हुई है, ये कितनी सुंदर हार्मोनी में, सहअस्तित्व में, को एग्जिस्टेंस में काम कर रही है, कैसे ये ताना बाना सुंदर बुना हुआ है. We start with it. So around us we see as first we see that we have mitti, patthar, mani, dhatu, that is soil, stone, precious, semi-precious stones, and some materials order. So we call that as material order. The earth, we are talking about a complete form of earth. May it be any earth, any planet. We name the planet. हमने ही planets का नाम रखा हुआ है कि ये Venus है, कि ये Saturn है, कि ये जो भी है प्लैनेट्स के नाम, जुपिटर है, ये मानव ने रखे हुए हैं. हिंदी में, इंग्लिश में, सब तरीके से रखे हुए हैं. पर वहां पे भी हम देखेंगे तो यही चीजें हमको मिलती हैं. एक प्रोग्रेशन है इसका, एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन है इसका, जिसमें पहले किस तरीके से कुछ चीजें बनते जा रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है उनमें आपस में. एंड हु इज मेकिंग इट, why, from where they are getting this energy. So they are soaked, dipped and surrounded by super divinity, supernatural. This is space जो मेरे और आपके बीच में, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, बिकॉज लैपटॉप आके एकदम मैं पास चले जाऊंगी तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे. तो ये स्पेस को हम देखते हैं कि ये स्पेस हमको ब्रह्मा के रूप में, ज्ञान के रूप में, ईश्वरीयता के रूप में प्राप्त है. और इसमें हर इकाई, every unit is soaked, dipped and surrounded by it. I'm giving as a proposal, and this is a big topic to discuss कि existence कैसे काम करता है, but I'm trying to put it in a small and short way. You all are invited for a bigger workshop to understand each and every functioning in the existence, which can be discussed scientifically and universally. तो हम देखते हैं कि कैसे एटम पार्टिकल्स के थ्रू ही मिट्टी बनी है, काइंड्स ऑफ सॉइल, पत्थर बने हैं, काइंड्स ऑफ पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, और वो भी लेयर्स में है. जो सबसे इंपॉर्टेंट है मानव के लिए, वो सबसे ऊपर में है. देन देयर आर लॉट ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स. ये क्यों है, इसका भी बड़ा मजेदार समझने का है कि गोल्ड क्यों है, डायमंड क्यों है, एमरल्ड क्यों है, टोपाज क्यों है धरती के अंदर. इज इट फॉर कीपिंग द अर्थ इंटैक्ट, keeping the magnetic field of the earth intact, or is it for human being to display their richness, or it is for the earth to exist in richness.
So also we have got so many materials in it. So the beautiful thing happens that ये सब जब बनते हैं, then there is one thing कि वहां पे फिर gases बनती हैं, पानी बनता है, हार्ड है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस के फॉर्म में भी हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी का जो रूल है, इट गोज टुवर्ड्स द स्लोप, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ. सॉलिड जो है, अगर आप इसको देखेंगे, दिस इज सॉलिड, तो ये वापस सॉलिड पे आता है. नो इसमें कोई रहस्य नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट इन इट. और गैसेस जो हैं ये हवा की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, हवा में मिलती हैं. तो ये पानी का बनना एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कोएग्जिस्टेंस का, कि कैसे ये सब साथ साथ हैं, कैसे धरती के किसी हिस्से में आयरन ओर है, किसी हिस्से में कुछ चीजें अलग से हैं, किसी हिस्से में कुछ हिस्से हैं, कुछ चीजें हैं, है ना. सो वी इन छत्तीसगढ़ हैव गॉट लॉट ऑफ iron ore with us. We have got the soil which produces lot of rice. तो इस तरीके से हर धरती में, हर हिस्से में अलग अलग चीजें वहां पे उनकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से वहां पे वो चीजें हैं ही, ताकि ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सके वहां पे. For before that, अर्थ ने, धरती ने अरबों साल, करोड़ों साल मेहनत करी है अपने इस फॉर्म में आने के लिए. इस प्रोग्रेशन के साथ में फिर एक टाइम ऐसा आता है कि गैसेस बन जाती हैं, एंड टू गैसेस दे आइडेंटिफाई ईच अदर, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कैन आई नो एनीबडी, श्रुति बेटा और तुषार बेटा, कैन यू आंसर, और एनीबडी ऑन द फेसबुक कैन राइट ऑल्सो कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? Can anybody answer on this? Okay, so let me propose, just check. एक जलने वाला है और एक जलाने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी. We will discuss one or two things because बहुत तो डिस्कशन यहाँ पे हो नहीं सकता because of the time restraint. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये इसमें एक जलने वाला, एक जलाने वाला. नियति सहज डिस्टाइन विधि से, नियति सहज विधि से एक जलने वाला, एक जलने वाला दोनों मिलते हैं. यहाँ कोई भय है? यहाँ कोई कंपैरिजन या कंपटीशन है क्या? यहाँ कोई अस्तित्व को मिटाने का या अस्तित्व को बनाने का कंपटीशन है? अस्तित्व तब है जब साथ साथ है. My existence is only when I live in coexistence. Otherwise मेरा कोई existence नहीं है. So children, this is very important for you to understand, for everybody, not only children, but अगर एक बार ये बच्चों को क्लियर हो जाए कि कैसे एग्जिस्टेंस में कोएग्जिस्टेंस हर रूप में, हर पल, हर क्षण है ही, ये विजन हमारा डेवलप हो जाए कोएग्जिस्टेंस को देखने का, तो हम डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, है ना. तो अब ये पानी का सुंदर बनना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक जलने वाला, एक जलाने वाला, मिल के बन जाते हैं बुझाने वाला, मिल के बन जाते हैं जल. इसको क्या बोलिएगा? कितना सुंदर है ये कोएग्जिस्टेंस. ऑक्सीजन ने अपना आचरण छोड़ दिया, हाइड्रोजन ने अपना आचरण छोड़ दिया, जब मिले तो नया आचरण अडॉप्ट कर लिया. कोई आवेश नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई फियर नहीं, कोई बिलीफ नहीं. नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर दैट गिव्स देम वरीज, बिकॉज पदार्थ अवस्था में वरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. वहां पे तो कुछ ऐसा कोई है नहीं ना जो वरी करे. तो ये इतना सुंदर क्रम है. वैसे ही वन मोर एग्जाम्पल आई लाइक टू गिव इज ऑफ कोल. कोल, कोयला, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कोल. What is the color of coal? So coal is of black color. What is the property of black color? It absorbs heat. और हमने अभी क्या कर दिया है? मानव ने धरती पर कोयले को खोद के खत्म कर दिया है. अब कोयला जो जल के जो गैस छोड़ता है, उसको पचाने का, उसको डाइजेस्ट करने का किसी में कैपेसिटी नहीं है. इट कॉजेस पॉल्यूशन. और 1 मीटर कोयले की लेयर को बनने के लिए उसके ऊपर 10 फीट के पुराने पेड़ होना जरूरी है.
This is so important. For 1 meter of 1 meter layer of coal, it is important that 10 feet tall trees has to be there. Then gradually and gradually and gradually, it takes years and years to form, crores of years the earth has taken to form that 1 meter layer of coal, which absorbs the heat which is coming to earth and keeps earth healthy. Every unit in earth has got temperature in it to regulate itself. हर जो इकाई है धरती में उसमें ताप है ही, निहित है ही, टेम्परेचर है ही. जैसे ह्यूमन बॉडी में एक नॉर्मल टेम्परेचर हम किसको कहते हैं? 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट किस में लेते हैं बताइए? क्या है? 94, 98 है, ये 34, 38 कुछ एक चलता है. माई मैथ्स इज वेरी बैड, बट आई नो 98.4 डिग्री सेल्सियस. इसको हम बॉडी के टेम्परेचर, इससे बढ़ता है हमारा टेम्परेचर तो हम परेशान होते हैं, लगातार बढ़ जाता है तब हम और परेशान हो जाते हैं. और हम वी गो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड टेस्ट टू diagnose that why are we feeling so sick, why is this temperature continuously running in my body. So it is the same with earth. We need to come to the root. We need to discover why is earth getting hot, why these green treaties and environmental treaties, are they only to sign on the papers, or actually we need to understand the making of earth, the existence, how it is working in coexistence, so we will not destruct anything in earth. It is as simple as it is. So that is why it is called Padartha Avastha. That is called material order. It has got different materials in layers, which gradually the other orders, when they come, they become complementary to each other, and they actually being complementary means we know the purpose and we are useful, but we are purposeful. We know the existential purpose. So everything here is with a purpose. It is not uselessly there. एवरीथिंग हियर, यहाँ पे हर चीज एक पर्पस के साथ में है. तो वैसे ही जब पानी एक जगह इकट्ठा हो गया तो वहां पे एक और सुंदर घटना घटी, दैट इज काई का बनना. और ये ऐसे ही नहीं बना, इसमें बहुत सारी चीजों का योगदान था. There were so many things working together for the next. The earth, now whatever the material order wanted, everything was there. It took years and years for its completion, and they were in coexistence, proving everything was complementary to everything. जिसके लिए जिसको जरूरी था वो उसके complementary होते गया. इतना सुंदर है इसको समझना, इतना गदगद होके, इतना खुश होके we can actually understand and live on this earth happily and let live and live. You know, so that is, और जीने दे के हम जी सकते हैं. तो हम देखते हैं कि कैसे पानी का बनना, because of some cosmic rays, sun rays and so many other combinations, this water was made. and जब वो इकट्ठा हो गया एक जगह पे तो वहां पे हमने काई का बनना देखा. काई में there was growth of proteins and hormones in it, you see, and transpiration cells were there which started breathing there, and they started identifying those things which was useful for their growth from the earth. धरती से वो चीज लेने लगे जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी थी. तो मैंने क्या चीज बताई? हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड प्रेस्पिरेशन वहां पे शुरू हुआ है ना. आप देखेंगे वहां पे इस तरीके से सांस लेना, सांस छोड़ना शुरू हुआ. कितना सुंदर है, क्योंकि आगे जाके यहीं से I see Shubha Banerjee Betaji watching on Facebook, and she's a wonderful person to explain this. Really, she's a I think assistant professor in agriculture university, and she was the first person who insisted me 4 to 5 years back that Didi हमको
ये वाला अध्ययन कराइए, हमको ये अध्ययन करना है रायपुर में. So how that was how, because agriculture college के ये syllabus में था, so that was how she started this course, this journey, where will be the 5th year. We will study all these beautiful things, you know. So वहाँ पे पानी के साथ में धीरे धीरे प्लांट ऑर्डर का, और इतना सुंदर है कि वहां पे एक ना उत्सव और नृत्य समान हो जाता है. ये अपने समझने के लिए वहां पे कोई डांस करना शुरू कर दिए हैं पेड़ पौधे, ऐसा नहीं. वहां कंप्लीशन होते जाता है. देयर वर सेल का मल्टीप्लिकेशन वहां से शुरू हुआ, डीएनए वहां से शुरू हुए, और एक और सुंदर चीज वहां से शुरू हुई, उसको हम कहते हैं रस. रस बनने वहां से शुरू हुए, है ना. those liquids, those juices were very important for the growth, for the hormones and proteins to multiply. And we see कि कितनी varieties of हमको प्लांट्स दिखते हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ खूब बड़े होते हैं, कुछ श्रब्स छोटे बीच के होते हैं, कुछ बेलें होती हैं. इस तरीके से धरती से वो उन चीजों को ले लेते हैं जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है. For a very common example which I always give, and I always used to adore when I used to sit, I still adore it. While sitting in my garden, I watch कि एक नीम का पेड़, एक मुनगा का पेड़ ऐसा ऐसा लगा हुआ है. ना मुनगा कभी कड़वा हुआ, ना नीम कभी मीठा हुआ. मुनगा is drumsticks. Munga is what you call these days आजकल moringa. Moringa. Well, big market after this corona of moringa. So moringa, the sticks of moringa sticks, they are very nutritious and very good, very sweet in taste also. So they are taking whatever they required, whatever nutrients they require, they go inside the earth and take it. They are never afraid. वहां पे कोई डर नहीं है. Have you ever seen कि नीम ने टेंशन के मारे कि कल पानी नहीं मिलेगा, आज हम पानी भर के रख लेते हैं 10 बाल्टी, ऐसा किया हो? No. So there we see that they are already in orderliness and participating in a bigger orderliness. How they are participating in a bigger orderliness? See, जब ये जड़ें नीचे तक के जाती हैं तो ये अपने पानी की रिक्वायरमेंट को या जो कोई भी रिक्वायरमेंट है इसको पूरी करती हैं. अब पदार्थ अवस्था में धरती के अंदर जो पानी है वो उसके स्वास्थ्य के, उसके हेल्दी रहने के लिए है, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स है. हम 200 फीट, 250 फीट, 150 फीट धरती के नीचे जाके पानी निकालते हैं, विच इज नॉट हेल्दी फॉर ह्यूमन बीइंग. धरती के 8 फीट में जो पानी है which is healthy for human being, जहां तक के ऑक्सीजन जाती है. तो इस तरीके से कितनी कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है. बिना किसी भय के, बिना किसी आस्था प्रलोभन के, एवरीथिंग इज ग्रोइंग टुगेदर. आप कितना भी ये डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, मैन्योर डाल दीजिए, पालक आम के समान होगा नहीं. और आम में आदमी का इंटरवेंशन हो तो वो उसको छोटा 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 सा करके रखता है, बट अगर देखा जाए तो आम का पेड़ अपने आप में बड़ा सुंदर, उसकी छाया और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत है. सो द कॉम्प्लीमेंटरीनेस, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बिगर ऑर्डरलीनेस इज दैट दे गिव ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. They are the source from where all the bodies are made. Isn't it right? Is there any fear in it? Also, that is the first place where we see male and female. हम वहां पे मेल और फीमेल सबसे पहले देख रहे हैं. पेड़ पौधों में हमने सबसे पहले मेल फीमेल देखा. पेड़ पौधों में हमने सबसे पहले मृत्यु देखी, डेथ देखी. डेथ कैसे देखी कि पत्तियां जब सूख जाती हैं, पेड़ जब सूख जाता है तो वो धरती पे गिर जाता है. नाउ सी द ब्यूटी, द कोएग्जिस्टेंस, द कॉम्प्लीमेंट्रीनेस. अब देखिए कि कैसे एक मरा हुआ पेड़ या पत्तियां या फल कैसे धरती पे गिरकर वापस धरती को एनरिच कर देते हैं, फर्टाइल कर देते हैं, मैन्योर बन जाते हैं.
ब्यूटिफुल, दैट इज हाउ द ब्यूटिफुल। और सबसे और सुंदर इनकी प्राण अवस्था, प्लांट ऑर्डर की कंटिन्यूटी, यू कैन कॉल इट एज बायो ऑर्डर ऑल्सो, इनकी कंटिन्यूटी दे हैव इट इन देयर सेल्फ, उसको कंटिन्यू रखने का जस्टिफिकेशन उनके पास में है। कैन एनीबडी टेल कैसे? उसमें बीज होते हैं, तो बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, ये रिसाइक्लिंग प्रोसेस उनका चलता रहता है। वैसे ही मटेरियल ऑर्डर में धरती में जितना पानी की जरूरत थी वो पहले बन चुका है, अब ये रिसाइक्लिंग ऑर्डर में है। वो भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर नीचे आता है बारिश बन के, और फिर धरती को एनरिच कर देता है। धरती में जितनी चीजें हैं उनको एनरिच कर देता है। और हम अभी यहाँ पे आदमी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी दो ही अवस्थाएं हैं जिसमें एक मटेरियल ऑर्डर, एक प्लांट ऑर्डर है, और इनकी हम कॉम्प्लीमेंट्रीनेस को समझ रहे हैं, हाउ दे आर इन एग्जिस्टेंस एंड हाउ दे आर वर्किंग टुगेदर, को एग्जिस्टेंस में है। और कहाँ से ये जो हमको मृत्यु भय, हम भय की बात कर रहे थे, तो यहाँ इनकी कॉम्प्लीमेंट्रीनेस देखेंगे। भाभी इफ यू कैन जस्ट, इफ यू हैव, अच्छा अब आप नहीं कर सकेंगे ना उसमें कि प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था में कॉम्प्लीमेंट्रीनेस को इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, because this slide is already made and it is in PPT. I'm so sorry. Otherwise, we could have showed you that there is complementariness between material order and plant order. वहां पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां कोई भय नहीं है, और कैसे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन हो रहा है, कैसे, है ना, कैसे वहां पे प्रेस्पिरेशन हुआ, कैसे प्रोटीन्स और हार्मोन्स हुआ, कैसे वो धरती से, यस वेरी गुड, थैंक यू भाभी, वहां पे कैसे धरती से उनका आदान प्रदान हो रहा है चीजों को लेने का, कैसे ग्रोथ वहां पे दिखती है बिकॉज प्रोटीन और हार्मोन्स हैं, और कैसे बॉडी के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और इनकी कंटिन्यूटी बनी रहने के लिए कैसे बीज वृक्ष बीज न्याय वहां पे है, दैट इज कॉल्ड प्लांट सीड, प्लांट सीड. So that is how it is beautiful, plant seed and plant seed. And in material order, if you see the law of it, they always are result oriented. We saw the one result कि hydrogen और oxygen मिले, उनको मिलाया तो we got a result that is called water. तो इनका जो बेसिक कंटिन्यूएशन है दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, इनका जो प्लांट ऑर्डर का, बायो ऑर्डर का कंटिन्यूएशन है सीड एंड प्लांट ओरिएंटेड. So that is how it is beautiful. Bhavi, can we go? Yes, yes. Now here, जब जितने पेड़ पौधे होने थे, जितने पेड़ पौधे बनने थे, वो पूरे बन गए, और उसके बाद में हमारे पास में जब पत्तियां नीचे गिरी, धरती में गिरी, और वहां पे ह्यूमिडिटी थी, वहां पे नमनेस थी, पानी था, गीली मिट्टी थी, पत्तियां थी, सूर्य की किरणें थी, ऐसे सारी चीजें होने से वहां पे सबसे पहले वाटर बॉर्न इंसेक्ट्स बनने शुरू हुए. वाटर बॉर्न में वापस वो जूस था, उनमें एक रस था उनमें, बस दैट वाज ऑल. वहां पे अभी ना कोई आत्मा है ना कुछ चीजें हैं, ऐसा मेरा प्रपोजल है, आप जांच के देखिएगा कि आत्मा को भी समझना कठिन बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे आत्मा बनी है. So it is very answerable, and I remember that when normally every time this happened, कि मैं जब भी बच्चों का वर्कशॉप लेती हूँ और उनका ये क्वेश्चन होता है, देवी देवता, भूत प्रेत, आत्मा कैसे बनी, मन क्या है, भूत क्या है, ये सॉरी डर क्या है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं. And with 18 to 22 years children, when I answer them, when I tell them how I tell them scientifically कि कैसे आत्मा बनी, and they feel so relaxed that it is not any rocket science, it is not a secret. इसको समझना कठिन नहीं है, और ना देवी देवता को समझना कठिन है, ना ईश्वर को समझना कठिन है. हर चीज जो मानव के जीने के लिए जरूरी है, we can understand all those things very comfortably. Only we need is 10 years, because in education system this is not yet incorporated. कुछ जगह पे जैसे दिल्ली के हैप्पीनेस करिकुलम में, ट्रिपल IITs में, यानी AICTE में, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, ये सारे एज अ
syllabus has become very important. So we see we've introduced pranavastha, we've introduced plant order. Now we have introduced slowly कि कैसे सिर्फ अभी वाटर बॉर्न इंसेक्ट्स आए हैं एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेशन देखिए, स्लो प्रोग्रेशन, वेरी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, कैसे धीरे 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 धरती की खूबसूरती, धरती का पूरा अपने आप में बनना, हर ऑर्डर का अपने आप में ऑर्डर में रहना एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ बिगर ऑर्डर. It is so beautiful how the bio order, plant order is being useful to the material order, and now we've introduced animal order in it. So animals में अभी insects आए, फिर eggs से और mammals से बढ़ने वाले, जन्म लेने वाले mammals यानी womb से, कोख से जन्म लेने वाले, अंडे से जन्म लाने वाले पहले आए, और फिर उनको कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहते हैं अंडज और पिंडज. So that is already taking birth from eggs and taking birth from wombs. और उसमें सारे किस्म के जानवर आ गए, उसमें कुछ धरती पे रहे, कुछ हवा में रहे, कुछ पानी में रहे. इसमें भी इतना सुंदर प्रोग्रेशन है जिसको हम कहते हैं कि हमारी परंपरा में कहा गया है कि 84 लाख योनियां क्या होती हैं. तो यही वही चीजें हैं, है ना, कि इसमें स्लो ग्रोथ ऑफ क्या क्या चीजें हैं, सप्त धातुएं होती हैं, जिसमें हम धीरे धीरे देखते हैं कि रस के साथ में, है ना, सप्त धातुओं को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं कि सप्त धातुओं की सीक्वेंस कैसी है. सप्त धातु में सबसे पहले रस आया, फिर मांस, फिर बोन मैरो, फिर रक्त, फिर स्नायु यानी नर्व्स, फिर हड्डी बोन, देन वसा. तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन क्रम में हम देखते हैं कि ये कैसे सप्त धातुओं का बनना हुआ, और उसमें कुछ कुछ जानवरों में हमको कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं, और साथ में 5 सेंस ऑर्गन्स का डेवलप होना हुआ. तो आप देखेंगे कि किसी में मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स में, कैन यू जस्ट राइट डाउन भाभी समवेयर इन द कॉर्नर around this animal order, 5 सेंस ऑर्गन्स में हम क्या क्या चीजों को दिखते हैं. हाँ, 5 सेंस ऑर्गन्स वहां पे एक स्लो प्रोग्रेशन में हमको देखने को शुरू हुआ. कुछ जानवरों के पास में कुछ सिर्फ एक रस था, 2 रस हुए, 3 रस हुए, 4 रस हुए, 5 रस हुए, 6 रस हुए, 7 रस हुए, और वहीं से स्पाइनल कॉर्ड का प्रोग्रेशन भी दिखा हमको, और वहीं से हमको 5 सेंस ऑर्गन्स का भी प्रोग्रेशन दिखा कि किसी में एक सेंस था, किसी में सिर्फ स्मेलिंग सेंस है, किसी में सीइंग सेंस है, किसी में हियरिंग सेंस है, किसी में टेस्ट सेंस है. ऐसे करके 5 सेंसेस धीरे धीरे वहां से, किसी की स्किन सेंसिटिव है, किसी में स्किन से सेंसेस है, तो इस तरीके से 5 सेंसेस ग्रेजुअली प्रोग्रेस किए, और वहां फिर एनिमल ऑर्डर पूरा स्टैब्लिश हो गया. It was so beautiful. And कुछ animals में which has got a spinal cord which can manage their throat, their neck, not throat. तो वहां पे I propose this, वहां पे जीवन यानी वहां पे आत्मा इंट्रोड्यूस हुई so that it can run the bodies. तो कुछ जानवरों के शरीर में वहां पे आत्मा आई. आत्मा कैसे बन गई? इट इज ऑल्सो सैचुरेटेड एटम पार्टिकल्स. वहां पे एटम पार्टिकल्स से ही बनी हुई है, बस वो सैचुरेटेड एटम पार्टिकल्स हैं. सेंटर में 1 पार्टिकल, 2, 8, 18, 32. दैट इज हाउ द सर्कल ऑफ जीवन इज, हाउ द एटम पार्टिकल्स आर देयर. मन में 32, मन शरीर के सबसे करीब है. So we will discuss it later. Right now we are talking about the orderliness in the animal order. So we see कि मेल फीमेल प्लांट ऑर्डर में दिखा कैसे प्लांट ऑर्डर अपना होने को जस्टिफाई करता है बाय प्लांट सीड. एनिमल्स में कैसे वो अपने होने को जस्टिफाई करते हैं, वो अपने वंश को बनाए रखते हैं, और हर वंश में उनका आचरण निश्चित रहता है. इसलिए आप देखिए कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है. इसलिए फिर कार्निवोरस आए, क्योंकि कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, तो इनका अपने आप में बैलेंसिंग है.
और बहुत सुंदर चीज आपको देख एक और बताती हूँ, ये मेरे अभिभावक विद्यालय के क्लास 3 क्लास 4 के बच्चों का सिलेबस है कि हर्बीवोरस कार्निवोरस एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी थी, आगे आके मानव शरीर बनना था और जीवन यहाँ बन चुका है ऑलरेडी। तो इतना सुंदर है कि इनकी जो हर्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी जानवर हैं, उनकी आंतों का स्ट्रक्चर अलग होता है, और जो मांसाहारी जानवर हैं उनकी आंतों का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके नेल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। फ्लैश खाना होता है, मांस खाना होता है, इसलिए पॉइंटेड नेल्स, मांस खाना होता है इसलिए पॉइंटेड टीथ, ये फ्लैश वालों का होता है। और जबकि हर्बीवोरस के यानी शाकाहारी जानवरों के ऐसे नहीं होते हैं। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वे दे ड्रिंक वाटर। इफ हैव यू एवर नोटिस्ड कि जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनका पानी पीने का तरीका कैसा है, और जो शाकाहारी होते हैं उनका पानी पीने का कैसा है तरीका। तो जो मांसाहारी होते हैं दे ड्रिंक फ्रॉम टंग। आई कैन नॉट टेक दिस फ्रॉम माई टंग, ऐसे करके मैं नहीं पीती हूँ। आई टेक इट फ्रॉम माई लिप्स। दैट इज हाउ cows drink water from their lips. That is how goats drink water. That is how camel drink water. कितना सुंदर है ये बताएं, कितनी सुंदर व्यवस्था अपने आप में। इसमें आदमी कहाँ अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, आदमी उसके बिना इंट्रोड्यूस हुए इतनी सॉरी। नाउ सी द कॉम्प्लीमेंट्रीनेस दैट एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस इज इन ऑर्डर एंड पार्टिसिपेटिंग इन बिगर ऑर्डर। तो एक गाय का बच्चा गाय को ही जन्म देता है, उसका आहार, उसका विहार, उसका खाने का तरीका, उसका जितना जो भी आचरण है वो अपनी माँ के समान ही होता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं सालों से गाय का बच्चा होते होते थक गया हूं, आज शेर हो जाऊंगा। या धरती कभी नहीं कहती कि मैं सूरज के बार बार इसी रास्ते पे चलते 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 थक गई हूं, आज थोड़ा सा मंगल के आसपास चक्कर लगा के आ जाऊं। कभी नहीं। कभी आम नहीं कहता कि मैं आम होते होते थक गया हूं। हम कहते हैं कि हम आदमी रहते रहते थक गए हैं। हम अपने आप से परेशान रहते हैं कि हम घर में रहते रहते थक गए हैं। तो इसके इनके कॉम्प्लीमेंट्रीनेस देखिए कि ये प्राण अवस्था के लिए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। भाभी, कैन वी हैव दैट एरो देयर? So pran avastha, I mean the bio order, supplies food and oxygen to the animal order. An animal order, what does it do for the bio order? So everything what is that? See, their shit, उनकी जो stool है, उनकी जो potty है, उनकी जो urine है, ये not enriches and keeps healthy not only the plant bio order but also material order. It is so beautiful. कोई झगड़ा है वहां पे, कोई लड़ाई है वहां पे नहीं है। कहीं पे कोई भी तरीके से कोई कंपैरिजन, कंपटीशन, कोई एंगर कुछ है वहां पे नहीं है। इट इज सो ब्यूटीफुल, कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है। एंड बाय बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, उन्होंने क्या किया, अर्थ को एनरिच कर दिया। जितना अर्थ एनरिच होती है उतना बायो ऑर्डर एनरिच होता है। अब इनके जो ये इनकी डेथ हो जाती है जानवरों की, बिकॉज वी हैव सीन डेथ ऑकरिंग फ्रॉम प्लांट ऑर्डर। पत्तियां मरती हैं, जमीन में गिरती हैं, पेड़ मरते हैं, जमीन में गिरते हैं और सॉइल को एनरिच कर देते हैं। वैसे ही जो पशु पक्षी हैं एनिमल ऑर्डर में, वो जब मरते हैं तो वो भी मटेरियल ऑर्डर में सॉइल को एनरिच कर देते हैं और उनकी जो बोन्स हैं वो भी अंदर जाके फॉसिल टाइप बन जाती हैं और उसमें भी वो कॉम्प्लीमेंट्रीनेस होती है। अब एक और चीज सुंदर है कि पशु पक्षी की सांस से, उनके यूरिन से प्राण अवस्था का ट्रीटमेंट हो जाता है, उनके स्टूल से प्राण अवस्था का ट्रीटमेंट हो जाता है। ये तो आदमी आया तो उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वेटनरी डिपार्टमेंट और ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट खोल दिए। उसके पहले क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्रीनेस नहीं थी?
One of my friend, he says, I have to run a poultry business because if I don't run a poultry business, there will be n number of hens in the earth. So मुझे खाना भी जरूरी है. अगर मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा तो यहाँ 1.5 मुर्गे हो जाएंगे. So I am not going against कि मैं नहीं कह रही हूँ कि ये खाइए कि नहीं खाइए. Just check कि हमारी बॉडी किस हिसाब से बनी हुई है और हमारा आहार कैसा होना चाहिए, उसके अनुरूप, है ना, टू कीप अस हेल्दी. तो कितना सुंदर कॉम्प्लीमेंट्रीनेस हम यहाँ पे देखते हैं कि एक एक पशु पक्षी का होना कितना सुंदर है. और अब इनका ये अपने वंश को बनाए रखते हैं और इनके ट्रेड्स हैं, इनकी टेंडेंसीज हैं. क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन. और मैथुन भी मतलब फिजिकल ब्रीडिंग भी ये हमेशा कर रहे हो ऐसा नहीं है. सेक्स भी ये हमेशा कर रहे हो ऐसा नहीं है. देयर इज वन पर्टिकुलर सीजन ऑफ देयर ब्रीडिंग, उसी समय करते हैं. खाने का भी ये 24 घंटे खा रहे हैं ऐसा नहीं है. तो ये खाने के लिए जिंदा है कि जिंदा के लिए रहने के खाने, ये आदमी की कल्पना है. पर जानवरों की टेंडेंसी जो रहती है वो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन. भयग्रस्त होते हैं ये किस चीज के लिए? इसलिए क्राउड में रहते हैं. कैसे? एक हिरण क्राउड में रहता है, ये उसके आचरण में ही, उसके बिहेवियर में ही है, क्योंकि शेर उस पे हमला कर देगा. तो वो अपनी जान बचाने के लिए, बस इसको कहते हैं कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो भयग्रस्त रहता है. तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 इसकी टेंडेंसीज है. और अब धीरे से कौन इंट्रोड्यूस हुआ? इनकी कॉम्प्लीमेंट्रीनेस हमने देखी, हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये देखा कि हाउ 3 ऑर्डर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एवरी यूनिट इन it is in order and is participating in a bigger order, is being complementary to each other, is in coexistence. अब मानव आया और मानव को नॉलेज ऑर्डर कहा गया है, ज्ञान अवस्था से कहा गया है, ज्ञान अवस्था कहा गया बिकॉज बिना नॉलेज के आदमी अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सकता. We can be educated, but yet we are not wise. We are not knowledgeful. ये जो नॉलेज है पूरी ऑर्डरलीनेस की, ये एग्जिस्टेंस की, ये को एग्जिस्टेंस की, ये मानव के लिए बहुत जरूरी है. उसको हर जगह एक नियम चल रहे हैं. आप देखें कि पदार्थ अवस्था का में, मटेरियल ऑर्डर में देयर इज अ लॉ, नेचुरल लॉ. Plant order में there is a natural law, animal order में there is a natural law. So there must be some natural order, natural law for whole human order, knowledge order. So knowledge order में human being है with their innate nature. एक religion है उनका, एक aim है उन सबका, existential purpose है उनका. जैसे सबका यहाँ पे तीनों ऑर्डर्स का एग्जिस्टेंशियल पर्पस है, एक प्रोग्रेशन उसका सीक्वेंस है. उसको वी कैन गिव अ नेम, विकास क्रम विकास, जो पूरा हो जाता है कहाँ के? एनिमल ऑर्डर में. और एनिमल ऑर्डर से शुरू होता है जागृति क्रम, जागृति कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट, जो मानव में आके नॉलेज के साथ, वैल्यूज के साथ पूरा होता है. तो मानव का शरीर तो बन गया, प्लांट ऑर्डर से शरीर बनते आ रहे थे. और आत्मा के बारे में आपको मैंने बताया ही है कि मध्यस्थ में एक अंश है आत्मा जो बैलेंस्ड है, न्यूट्रल फोर्स है, और बुद्धि है पहला परिवेश, दूसरा परिवेश चित्त का, तीसरा परिवेश वृत्ति का, चौथा परिवेश मन का. और मन में 32 अंश समझने के लिए, 32 अंश चूज करने के लिए, और वो शरीर के सबसे करीब रहता है, इसलिए मन सबसे विचलित रहता है. नॉलेज फुल होने के लिए मानव के पास में 2 ब्लेसिंग्स दी गई. किस लिए ब्लेसिंग दी गई? नाउ बी वेरी केयरफुल फॉर व्हाट आई एम सेइंग चिल्ड्रन, बिकॉज this is very important. Why have got we this? We are blessed with freedom to think. Think so that we can check our
conscious level status and our knowledge status and our wisdom status, because उसी से, that is the natural law, उसी लॉ के तहत हम अपने आप को, एक जो नियम है मानव हो के जीने का नियम है, we can follow that नियम and we can follow that natural law and we can happily live happily. So why have we come into existence? So that we grow in consciousness level and complete the cause of our being on earth. And in order to complete that cause of being on earth, we have got freedom to imagine and freedom to do. But due to illusions, we misuse this imagination power and we have dubbed the earth. हमने material order को खत्म कर दिया because we are in illusion. हमको हमारा existential purpose नहीं पता कि हम धरती पर क्यों आए हैं. तो हमारा relationship पदार्थ और material order के साथ कैसा है और धरती का relationship हमारे साथ कैसा है. धरती हमको हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ दे ही रही है. Everything, you name the thing and it is from there. It is from धरती. Either धरती, either material order or plant order or animal order. तो मटेरियल ऑर्डर हमको दे रहा है, प्लांट ऑर्डर हमको दे रहा है, एनिमल ऑर्डर हमको दे रहा है, पर हम क्या क्या इसको दे रहे हैं? There is a question mark there. So our giving to animal order, we have finished the animals, extinct हो गए हैं. We finished the naturalness of the natural fauna and aura of material order. We have finished plant order. So that is why so much of takleef, terrible disasters which we are seeing now. That is why Corona is here. Give space, stop traveling, stay in home, check your thought process, check your purpose, check your food habits, so that हम सबके साथ में कैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्रीनेस हो, धरती अपने आप को हील कर सके. जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं, हम खाना पीना लाइट कर देते हैं अपना, हम घर में रहते हैं, हम आराम करते हैं. वैसे ही हमको कोई डिस्टर्ब ना करे हम चाहते हैं. तो वैसे ही धरती के साथ में है कि इट नीड्स टू, उसमें अपने आप में हीलिंग कैपेसिटी, लाइक आवर बॉडी. एक प्लेट यहाँ से कट जाए, चाकू से कट जाए, it heals automatically. That's because that is the natural thing which is there in material order, plant order and animal order. Who were treating them before human being had arrived on earth? No one was there to treat them. They were treating by themselves. So animal order के अपना तरीका रहा plant order को treat करने का, plant order से ऑक्सीजन लेना और वहां से मटेरियल ऑर्डर से पानी लेना या जरूरतों की जो चीजें हैं वो लेना. तो ह्यूमन बीइंग के पास इमेजिनेशन रही विथ 5 सेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, जिसको हम कहते हैं 5 सेंसेस. आई वुड नेम देम शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श. शब्द, माउथ, सबसे ज्यादा हमको दुखी करते हैं हमारे अपने बोले हुए शब्द, या हम दूसरे के शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हमें वो नॉलेज नहीं है कि कोई गुस्से में कुछ कह रहा है तो वो डिकोड करना, उसको मैं समझ सकूं कि इस आदमी की कोई भी बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने किस्म के मानव के साथ हमारे को फेस करना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम कौन से मानव नॉलेज ऑर्डर में हम कौन से प्लेस में हैं. तो शब्द, फिर हम रूप से प्रभावित, हमको रूप मिला है, ये स्किन है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये यहीं खत्म हो जाएगी. पर जीवन की क्या है? जीवन में एक सुंदर चीज है, अमृतत्व है. इट नेवर फिनिशेस. और शरीर का नश्वरत्व है और व्यवहार के कुछ नियम हैं. ये हमको अलग अलग होंगे हर मानव के लिए कि एक होंगे.
I would tell that Jivan is immortal, body is mortal, and there are few laws of behavior for human being. That's it. That's it we call is being knowledgeful. And for that we need to be wise. Wise means understanding the existential purpose, understanding the making and functioning of Jivan, understanding the wholeness of the human conduct, so that we can have this knowledge, and that with this knowledge we can actually be scientific. अभी जो साइंस है वो बिना विवेक के है, बिना जो विज्ञान है वो बिना विवेक के है, बिना ज्ञान के है। तो विज्ञान आधा अधूरा धरती को खत्म कर दिया। विज्ञान विद विवेक में हमको पता रहेगा कि कोई चीज को कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस पर्पस से करना है, कितना करना है ना। तो शब्द रूप रस टू कीप अस हेल्दी, जैसे बॉडी में कुछ रस हैं, बॉडी को एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैज गॉट सम सिक्रीशन, माउथ हैज गॉट सम सिक्रीशन, स्टमक हैज गॉट सम सिक्रीशन, so every organ has got their own juices. So 5 shabd roop ras gandh sparsh, we have those 5 things, so that what it is to maintain body equilibrium, and they are connected with man. Whatever I am speaking is connected with my man. Man is connected with higher authority. Higher authority is the power of analyzing, the power, the vision. And then there is Chit, it has got for some function. Then there is Buddhi, which has got Bodh and Sankalpa Kriya, which has got another function. Then there is Atma, which has got another function. So that is how the completion is. पर मन उतने ऊपर तक के जा गया नहीं है, तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में मन फंस जाता है। गंध हमारे को मिली हुई है कि हम पहचान सकें कि कोई चीज सड़ी है, गली है ना, कैसी है, उसके लिए हमको स्मेलिंग पावर है हमारा। स्पर्श है कि हम क्लाइमेट को पहचान सकें और बॉडी को हेल्दी रखें। आज हम स्पर्श में उस जगह आ गए हैं कि हमको बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाना पड़ता है। So beautiful of human knowledge order is that it is blessed with with the potential to understand, to check within, and it has got this freedom to imagine and freedom to do. And because of that illusion, it has destructed the material order, the animal order, the plant order, and with so much of destruction, किसी को दुखी रह के, किसी को जीना ना देके, किसी को घायल करके क्या हम सुखी रह सकते हैं? Now children can set their goal. Now with that we are born in a family. As a human child, we have a purpose to be born in a family. So we must know the importance of relationship also. संबंध क्यों है, परिवार क्यों है, कितने प्रकार के संबंध हैं, अपेक्षाएं कितनी हैं. So we have the ability to understand each and everything in existence, as rightly Bhabiji is writing there on the slide. So it is so beautiful that where are we using our energy? Full energy, पूरा क्रोध आवेश, विध्वंसकारी और सम्मोहनात्मक, 2 तरीके के आवेश उसमें हमारा और परिवार में. अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग पे मेरे सेशंस ऑलरेडी हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्डेड हैं वहां पे. अब भी खत्म हुआ है पेरेंटिंग का सेशन, तो वहां पे ऑलरेडी हैं. सो वी आर बोर्न इन अ फैमिली, वी हैव पेरेंट्स हैव गिवन अस बर्थ. बट वहां पे भी हार्मनी हमको दिखती नहीं है, हैप्पीनेस हमको दिखती नहीं है, क्योंकि खुद का एग्जिस्टेंशियल पर्पस हमको पता नहीं है. परिवार में आते हैं तो एक इंडिविजुअल का फैमिली के साथ में कैसा रिलेशन है. इज इट हार्मोनियस और डज इट हैज क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप? डू वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फैमिली? Do we understand, do we have
कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग। ठीक है, प्राणावस्था आपका ग्रेटिट्यूड नहीं लेगी, एनिमल्स आपका ग्रेटिट्यूड और मटेरियल ऑर्डर ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा, पर हम अगर थैंकफुल रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हम अपने आप को ऐसे जो लोग, तमाम लोग या तमाम चीजें जिन्होंने मेरे अच्छे होने के लिए काम किया है, उनके लिए अगर मैं थैंकफुल रहती हूँ, तो उनके सामने मेरा बिहेवियर कंट्रोल रहता है, मैं उनका डिस्ट्रक्शन कभी नहीं चाहूंगी। So this has to be gratitude, feeling of gratitude has to be continued. So most of the children of 18 to 22 years, when they come and join me, they have this first problem in their family. My papa and mama fight a lot. My mom interferes a lot. My father instructs a lot. So that is how there are few relations in the family. There are few relations for the society. And there are few relation for man-made systems, for the production and for trade. For whatever we have produced, we have to trade it to fulfill our requirements. So we have made some basic man-made system, Manavkrit Vyavastha. So first, कि मेरे स्वयं, if I see myself as a knowledge order human being, तो आदमी ज्ञान से ही अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। तो लेट मी चेक विद इन माई सेल्फ कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई नहीं करिए, माइंड बेस, आई एम नॉट सेइंग डोंट गेट एजुकेटेड, आई एम सेइंग go get educated and be wise also, be universally wise, think of the universal goodness, aim, goal for the universal goodness, because that is what children, the earth needs right now, humanity needs right now. That is the goal setting and it doesn't have. आदमी के पास भय, क्योंकि वो पशु एनिमल ऑर्डर से जन्मा, तो वहां से उसने वही चार चीजें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में जीना सीखा। पर भय में जीना किसी को स्वीकार नहीं होता। Nobody wants to live in fear. Nobody wants to just keep on eating and living and living and eating and eating and living. That is जिंदा रहना। ऐसे तो जानवरों के समान आदमी जी रहा है, तो फिर आदमी होके क्या जन्मा हो, मानव होके क्या जन्मा हो। तो जिंदा रहने के लिए तो सिर्फ ये चीजें हैं कि हम सेंसिटिविटीज में, 5 सेंसेस में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, या फिर हम 5 सेंसेस में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसी में जी लें। पर मन तो कुछ और चाहता है। मन का लक्ष्य है खुश होना, वो विश्वास चाहता है, सम्मान चाहता है, अफेक्शन चाहता है, वो ग्रेटिट्यूड चाहता है, वो पेरेंटिंग करना चाहता है, उसमें श्रद्धा है, किसी और को अच्छा, श्रेष्ठ एक्सेप्ट करना चाहता है, वैसा होना चाहता है, वो कुछ चीजों पे गौरव करना चाहता है, जिस पे गौरव करता है वैसे ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर को फॉलो करना चाहता है, पर वो फैमिली में नहीं मिला। सो कैन वी हैव दैट अगेन, दैट सिंबल विथ नॉलेज ऑर्डर, ह्यूमन एंड फैमिली की रिलेशनशिप कैसी है? भाभी जी, कैन यू जस्ट इंडिकेट दैट सिंबल की कैसी है? इज आर देयर, वहां पे भी क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव सोसाइटी विथ अस। सो रिलेशनशिप्स इन द फैमिली, वहां पे शिकवे गिले हैं, वहां पे तकलीफें हैं कि यूं मत खाओ, यूं मत उठो, बैठो मत, सो मत, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, है ना? या क्या है? कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है कि हम सॉल्यूशन, वी आर टेलिंग ये राइट है, इस राइट का ये रिजल्ट होगा, एंड माय राइट विल रिमेन राइट इन ऑल द सिचुएशंस विथ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन प्लेस। इतना ये स्ट्रॉन्ग राइट, आई नो, I have tried and tested and I am living that. इसलिए मैं डंके की चोट पे इस चीज को यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ। This righteousness and wrong का इम्पैक्ट क्या है, क्या ये हम बता पाते हैं कि इसका फल परिणाम? And let children live. Let them make their choices. They will strive for being wise. अगर उनको एजुकेशन में नहीं मिला है, उनको गोल सेटिंग में नहीं मिला है, वो भयग्रस्त हैं, तो वी हैव क्या, क्यों, कैसे, कितना, क्या भय, क्यों भय, कैसे भय, कितना भय, कैसे सॉल्व करना है? क्या एग्जिस्टेंस भय से चल रही है कि एग्जिस्टेंस पर्पस से चल रही है, कि एग्जिस्टेंस पर्पस फुलफिल करके को एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है? कितनी बार जब हम फंसते हैं, दुखी रहते हैं और हमको लगता है कि अब
कोई नहीं है धरती पे जब मेरी मदद करेगा। और फिर हम सुबह एक नई एनर्जी के साथ उठते हैं और कोई ना कोई अनजान आदमी आके हमको हेल्प कर जाता है। और हम थोड़े दिन में, या तो हमको किसी ने भी हमारे लिए कुछ किया हो, हम उसकी कंटिन्यू कृतज्ञता में नहीं रहते हैं। इसलिए हम बच्चों में बदलों की भावनाओं को हम पेरेंट्स भर देते हैं कि तुम्हारे बाप ने, मेरे बाप ने ऐसा किया, इससे बदला लेना, उस आदमी ने ऐसा किया, इससे बदला लेना। हम सिर्फ शिकवे गिले के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं फैमिली में। वंदना मावी, may I have your attention please? Yes, Didi. Can you just put that arrow मानव एंड परिवार के बीच में कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है कि नहीं है, कि क्वेश्चंस हैं वहां पे। उसके बाद में सोसाइटी है। सोसाइटी में क्या है, समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी। नाउ अगेन, क्या, क्यों, कैसे, कितना मानव का, कि मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसे हूं, कितना हूं। और फिर परिवार का, कि परिवार क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है। परिवार में संबंध है, रिलेशनशिप्स हैं, तो क्या है, क्यों है, कैसे, कितनी है। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं, कितनी है। वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। और इससे फिर अब हम जाते हैं तो हमारा एक और फिर दोनों जगह में क्वेश्चन है। मानव खुद भीतर एक द्वंद्व में पल रहा है, भीतर में बहुत विद्रोह जमा है। तो परिवार में शांति नहीं है, क्योंकि वो खूब ज्यादा होर्डिंग, संग्रह की प्रवृत्ति में है। और सम्मान किससे पाना चाह रहे हैं, परिवार वाले जो हैं, वो सम्मान एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्रीनेस के साथ नहीं है, दीता वीता उदारता दया कृपा करुणा के साथ, सेटिंग एग्जाम्पल चाहत के रूप में है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो समाज इसलिए है कि समाज मतलब मानव के लिए परिवार वो सबसे छोटी इकाई है जहां पे वो अपनी खुशियों को, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को प्रूफ देता है, प्रमाणित करता है। और फिर पूरा परिवार, ऐसे बहुत सारे परिवार मिलके समाज है, जिसको अभी हमने जाति में और वर्ग में डिवाइड कर दिया है। हमको अभी मानव समाज के रूप में देखने की आदत नहीं है। तो वहां पे भी आप देखिए कि परिवार और इस समाज की कितनी कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है। इस चीज को अगर हम देखते हैं, अगर हम समझते हैं, तो आपका फिर ध्यान आएगा कि मानव इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल समाज के लिए क्या पर्पसफुल हूं, क्या मुझे वहां पे कुछ करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्योंकि समाज तक जाने का रास्ता मानव खुद अपना फुलफिल्ड रहेगा, जो जिसके पास होगा वो उसको बांटेगा, परिवार में रहेगा, परिवार में खुश रहेगा, फिर समाज के पास जाएगा। और हम क्या करते हैं, अपने आप को भी स्किप कर देते हैं, परिवार को भी स्किप कर देते हैं, और यश बल की कामना के लिए, धन बल की धन से यश पाने की कामना, रूप से यश पाने की कामना, बल से यश पाने की कामना, इससे हम समाज में चले जाते हैं और फिर बहुत सारा धन दान कर देते हैं और उसको हम कहते हैं कि हमने दया करी। हम उसको भी दान दे देते हैं जिसकी पात्रता नहीं थी उस धन को। तो धन को भी समझना पड़ेगा कि हम धन और पैसा, वी विल कम टू दैट फियर। तो परिवार और समाज के बीच में कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है कि क्वेश्चंस है, और मानव और समाज के बीच में कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है कि क्वेश्चन है। वो गाना भी है ना, दुनिया ने हमको दिया, क्या ऐसा कुछ है ना, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या, टाइप का कुछ ये क्वेश्चंस है। और फिर ये पूरी मानव के समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हमने कुछ मैन मेड सिस्टम बनाए हैं, जैसे है ना, हमने कुछ एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है, हमने कुछ न्याय का सिस्टम बनाया है, कुछ हेल्थ सिस्टम बनाए हैं, कुछ प्रोडक्शन सिस्टम बनाए हैं, कुछ ट्रेड सिस्टम बनाए हैं। हाउ मच वी डू फॉलो इट? क्या हमको तो अभी न्याय हमारे भीतर में विजन के रूप में है, ख्वाहिश के रूप में है, ना वो परिवार से मिल रहा है ना वो समाज से मिल रहा है। तो व्यवस्था में अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने कितनी सारी व्यवस्थाओं को बना के रखा है, पर वहां व्यवस्था के, मैं वहां व्यवस्था का कारक हूं कि अव्यवस्था का कारक हूं, ये सोचने की बात है। तो मानव का
व्यवस्था के साथ रिलेशनशिप, फैमिली का व्यवस्था के साथ रिलेशनशिप, और हर जाति को हम जिसको समाज कह रहे हैं, हर जाति का, हर वर्ग का व्यवस्था के साथ रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन के साथ में है कि यहाँ पे ऑर्डरलीनेस है। भाभी ये वाले भी एरो कर दीजिए। सो हियर वी सी कि ऊपर की 3 ऑर्डर्स में हमको व्यवस्था, ऑर्डरलीनेस दिखती है, वहां भय, आवेश, आस्था, प्रलोभन वहां कुछ भी नहीं है। मानव के साथ में ये क्यों आया? आई विल आंसर दिस, क्योंकि मानव एनिमल ऑर्डर से आया है, तो मानव के पास में ये भय आया है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए नॉलेज या विजडम चाहिए। In order to solve this, we need knowledge and wisdom. तो कितने किस्म के लोग हमको जिंदगी में मिलेंगे बच्चों, जिनको we have to face and how do we identify? भाभी ये वाला फैमिली से व्यवस्था और समाज व्यवस्था और मानव व्यवस्था ये क्वेश्चन कर दें, तो इसलिए हमको यहाँ पे तालमेल नहीं दिखता, इसलिए हम एक दूसरे में गलतियां बहुत दिखते हैं, इसलिए हम कभी प्रधानमंत्री को, कभी मुख्यमंत्री को, कभी सिस्टम को, कभी दोष देते हैं। मानव से भी खींच दीजिए भाभी, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मानव नॉलेज ऑर्डर में मानवकृत व्यवस्था, वहां पे भी क्वेश्चन है, उनका भी आपस में लेना देना क्वेश्चन के साथ है कि नहीं है। तो इतने क्वेश्चंस के साथ हमारी गोल सेटिंग, क्योंकि अभी हमने वास्तविकताओं को, एक्चुअलिटीज को पहचाना नहीं है। दिस वन भाभी बीच वाला, नॉलेज ऑर्डर टू मैन मेड सिस्टम्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। मानव का आचरण निश्चित नहीं है, तो हमको कितने किस्म के मानव मिलेंगे जिनका आचरण हम पहचान सकते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ people, human being we have to face? If that is the question which I promised that I will talk about, so that fear in existence हमको पता रहे कि हम क्या है। Can we go remove to the next slide भाभी? Yes, types of people we come across. So we would come across people with animal consciousness. Now these people with animal consciousness has got what they have, their nature as cunningness, wretchedness and cruelness. पशु मानव जो विश्वासघात करेंगे, जो क्या होगा, हीन होंगे, दीन होंगे और क्रूर होंगे। हीनता, दीनता, क्रूरता, और इसमें इतनी सुंदर चीजें आप देखिए कि हीनता की और दीनता की कितनी सुंदर चीजें, कि हीनता विश्वासघात में होना है, विश्वासघात जिससे जिसकी अपेक्षा रहती है हमको, उसके विपरीत उसका बिहेवियर रहता है, और हम बोलते हैं कि उसने विश्वासघात किया, पर गलती हमारी है कि हमने उसकी पात्रता को जांचा नहीं, जाना नहीं, एक्सेस नहीं किया, उसकी पोटेंशियल को, उसकी रिसेप्टिविटी को हमने नहीं सोचा, समझा। तो एनिमल कॉन्शियसनेस में दीनता, हीनता और क्रूएल्टी, क्रूरता रहेगा। इनका जो जीने का जो पैटर्न रहेगा वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इनका जो विजन रहेगा पूरा समय कंप्लेनिंग, इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, मैं तो करने गया था, अच्छा ये नहीं हुआ। तो इनकी जो विजन रहती है, इनकी जो एनिमल कॉन्शियसनेस और डेविल कॉन्शियसनेस की जो विजन रहती है, ये विजन जो है ये सेंसरी प्लेजर को लेके होती है। एक विजन इनकी रहेगी, पहली विजन तो इनकी रहती है कि ये सबसे पहले कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन कंप्लेन्स रहते हैं, इनके विजन डेवलप नहीं होती है। फिर ये सेंसरी प्लेजर, मतलब सेंसेस से कुछ भी बोल के, आप देखें कि लोग 5-5 लाख रुपए एक सेशन का, मोटिवेटिंग सेशन का लेते हैं, 15-15 लाख रुपए लेते हैं, और हम यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान का और खुशियों का व्यापार हो नहीं सकता। तो सारी जगह पे इंडिया में, इंटरनेशनली हमारे जो सेशंस होते हैं मध्य दर्शन के, जीवन विद्या के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्योंकि ये शब्द हैं, ये भाव से जुड़े हुए हैं, ये स्नेह से जुड़े हुए हैं, ये विश्वास सम्मान से जुड़े हैं, ये मानव के होने से जुड़े हैं, मानव की खुशियों से जुड़े हुए हैं।
ये प्रेम से सारोबार होके जुड़े हुए हैं, ये सत्य से जुड़े हुए हैं, ये इस अभिव्यक्ति के लिए हैं कि एग्जिस्टेंशियल पर्पस मुझको समझ आए, मैं जी पाऊं, तो मैं दूसरे को भी वैसे ही एक्सप्रेस कर पाऊं। तो इस उसमें हमको लोग मिलेंगे जिनके इस तरीके के लोग होंगे, जिसमें एनिमल कॉन्शियसनेस और डेविल कॉन्शियसनेस होगी, जिसमें डेविल कॉन्शियसनेस में क्रूरता प्रधान होगी, क्रूअलनेस अधिक होगी, फिर कनिंगनेस, और फिर क्रूरता, दीनता और हीनता, हीन भावना से रहेंगे अपने आप को। उनका एनालिसिस बिल्कुल अलग रहेगा। वो बोलेंगे जरूर, पर वो अपने आप को या तो बहुत श्रेष्ठ साबित करने में, इगोइस्टिक साबित करने में लगेंगे, या हीनता में, बेचारेपन में, या अन्यथा में, जैसे कल हमने अपने एनालिसिस को दिया था। तो इस तरीके से सेंसरी प्लेजर्स में, कंप्लेनिंग में, प्रॉफिट अर्निंग, इनकी पैसा कैसे कमा लें, ये इनका विजन रहेगा कि हाउ टू अर्न प्रॉफिट, एंड या और एक और हाउ टू लुक ब्यूटिफुल, है ना। शरीर में हेल्दीनेस जो है बॉडी के, सिर्फ खाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनका ध्यान रहेगा, मन स्वस्थता पे उनका ध्यान नहीं रहेगा। तो विजन इस तरीके से 6 विजन होती हैं, है ना। 6 विजन में एक विजन हो गई है हमारी कि हम सेंसरी प्लेजर से सुखी होना चाहते हैं। प्रिय, जो ये अच्छा लग रहा है उसको किया, सुगंध अच्छी लगी, दिखने में अच्छा लगा, खाने में अच्छा लगा, उससे हम सुखी होना चाहते हैं। दूसरा, हम अपने हित के लिए, अपने शरीर के हित के लिए, है ना, शरीर स्वास्थ्यता के लिए प्लीजेंट, प्लीजेंट जो हमको लगता है उस चीज को करते हैं, ओनली फॉर बॉडी। तीसरा, हम प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ के लिए, एंड दीज 3 लीड्स टू क्रेजीनेस, पागलपन, जिसको उन्माद कहते हैं। पूरा सिस्टम अभी उसी के लिए है, एजुकेशन सिस्टम से लेके हर सिस्टम में लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगो, बस एक मानव जीवन मिला है, मस्त करो, ऐश करो और खत्म करो इस जीवन को। अगली पीढ़ी के लिए क्या करना है वो अगली पीढ़ी जाने, बाढ़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। Now, what we want is 4th vision, where actually we want is, this is what is 4th vision is justifications. हम न्याय चाहते हैं। We want happiness in relationship. Justification को मैं in relationship, happiness in relationships कहती हूँ। तो पहली तो मेरी अपने आप से रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, मुझको अपने आप के साथ में अपना होना समझ में आ जाए, और मैं अपना जीना एंजॉय कर सकूं, मेरे बिहेवियर पे मुझको विश्वास हो, मेरे पर्सनालिटी जिसमें कि पर्सन और एबिलिटी आता है, मेरे खाने पे, मेरे आने जाने पे, मेरे बिहेवियर पे, और मेरे पार्टिसिपेशन इन ऑर्डरलीनेस पे मुझको विश्वास हो। यही मेरी प्रतिभा, यही मेरा टैलेंट है। प्रतिभा संपन्न होना, टैलेंटफुल होना इज विजडमफुल होना। वाइज होने से ज्यादा टैलेंट आदमी में कुछ नहीं हो सकता जो उसकी पर्सनालिटी में दिखता है। उसके खाने पीने, हम जब लड़का लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, इसका खान पान कैसा है, इसके दोस्त कैसे हैं, ये कहाँ उठता बैठता है, ये क्या गुस्सा करता है, क्या ये सट्टा खेलता है, दारू पीता है, हम ये तो देखते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को समझने की, तो जस्टिफिकेशन मीन्स हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, आवर ओन रिलेशनशिप, आवर ओन एग्जिस्टेंशियल पर्पस समझ में आता है, तो परिवार में सबके होने का पर्पस समझ में आता है। फिर कोई भी आदमी हो, हमको उसके साथ जीने का डिजाइन बन जाता है, आराम से बन जाता है। तो जस्टिफिकेशन इज इन रिलेशनशिप। 5th इज हाउ द कैपेबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग माई एग्जिस्टेंशियल पर्पस, दैट इज कि मानव धर्म को पूरा करना, कैपेबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग माई एग्जिस्टेंशियल पर्पस। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हाँ, धरती पे सारे मानव का धर्म एक होगा कि अलग होगा, मानव धर्म एक होगा कि अलग होगा, गोल एक होगा कि अलग होगा, कि 750 करोड़ लोग अलग 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 एम के साथ धरती पे पैदा हुए हैं। तो एक छत के नीचे पति और पत्नी दोनों का एम अलग अलग, वो एक स्टोरी भी हमने सुनी थी जिसमें उस बच्चे के साथ में वो कुछ और बनना चाहते थे। तो एक छत के नीचे हम जिंदा रहते हैं कि खुशियों के साथ जीते हैं,
तो जिंदा रहने में और जीने में ये अंतर है। जिंदा रहना आहार निद्रा भय मैथुन के साथ, सेंसरी प्लेजर्स में, बॉडी प्लेजर के साथ, प्रॉफिट कमाने के साथ, पर चाहत में सुखी होना, चाहत में रिलेशनशिप में शिकवे गिले ना होना, ये रहता ही है। तो मानव धर्म क्या होगा, तो हम धर्म को समझना चाहते हैं। इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो जस्टिफिकेशन को हम हिंदी में न्याय कहते हैं, फिफ्थ में कैपेबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग माय एग्जिस्टेंशियल पर्पस को हम अपने धर्म को, मानव धर्म को पूरा करना कहते हैं, और सिक्स्थ इज अंडरस्टैंडिंग द इटर्नल ट्रुथ। ये विजन हमारी डेवलप हो जाए। सिक्स्थ को अंडरस्टैंडिंग इटर्नल ट्रुथ, सत्य। सच और सत्य दोनों में अंतर है। सच घटनाओं पे आधारित होता है, जो हमको सत्य तक ले जाता है। तो जो घटना जैसी घटी होती है, हम उसको वैसे ही शब्द दे पाते हैं, भाव के साथ में, बिना किसी चीज को छुपाए हुए। वो हमको सत्य, अटर्नल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, वहां तक ले जाता है। इस विजन में, कैन वी शिफ्ट टू द अदर दिस थिंग भाभी? नहीं, ये वाला नहीं, वो विजुअल टाइप्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस, और वो कंपैरिजन एंड कंपटीशन विथ विजन। ये विजन आ गई हमारी। हम कंपैरिजन अपने आप का अपने आप से करते हैं, कंपटीशन हमारी प्रतियोगिता हमारी अपने आप से नित्य है, अच्छे होने के लिए। प्रतियोगिता स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के अच्छे होने के लिए है। और कंपैरिजन इन 6 भाभी वो 7th अल्टीमेट ट्रुथ गलत हो गया, वो 6th होगा, गलत आ गया है। तो ये 6 दृष्टियों में हमारा परिमार्जन हो जाए। जो ऊपर की 3 सेंसिटिविटी है, वो सेंसिबल में हम टर्न हो जाए। तो सेंसरी प्लेजर्स का मतलब सेंसरी ऑर्गन्स का हमको, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन, जिसको कहते हैं हम उस सेंस ऑर्गन से, उससे सेंस करके हम समझदार हो सकें। जो दिख रहा है उसको हम समझें, डिकोड करें, और समझदार होने के लिए आदमी का स्वभाव ऐसा है, उसको देखें, समझें और उसको डिकोड करके हम समझदार हो जाएं। तो सेंसरी, ये विजन में हमारी जो है हेल्थ को, हमको बॉडी का पर्पस समझ में आता है कि जीवन का पर्पस फुल होता है तो बॉडी का पर्पस, बॉडी के माध्यम से जीवन अब उस पर्पस को फुलफिल कर पाता है। तो जीवन 2 मूल प्रश्न होते हैं, जैसे भाभी ने वो स्लाइड लाया कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। उसमें जीवन का मकसद है क्या है, ये हम एक्सिस्टेंशियल पर्पस को अगर सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में लेते हैं, तो बॉडी के साथ में हम एवरी मिनट हम समाधान चाहते हैं, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के साथ चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, अभय, बिना डरे जीना चाहते हैं, प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, पास्ट की कोई हर्ट नहीं चाहते, फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं चाहते, फियर नहीं चाहते, और हम हर चीज को हम समझ के करते हैं। तो हमको पता होता है कि किस चीज को क्या करना है, कैसे करना है। तो ये इसके साथ में हमारा जीने का बहुत सुंदर विजन डेवलपमेंट का, और विजन में हम कंपैरिजन करते हैं, खाऊं कि नहीं खाऊं, बोलूं कि नहीं बोलूं, ये कमाऊं कि नहीं कमाऊं। यस वंदना भाभी, इस तरीके से हम विजन में कंपैरिजन करते हैं। तो ये इन ह्यूमन ट्रेट्स के साथ में मैंने 2 प्रकार के आदमी बताए, जिसमें एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इन एनिमल कॉन्शियसनेस और डेविल कॉन्शियसनेस, है ना, पशु मानव और राक्षस मानव। हम अपने आप को देख लें कि हम कहाँ पे प्लेस्ड हैं। फिर हमको कुछ मानव मिलेंगे जिनमें धीरता, वीरता, उदारता और दया रहती है। देव मानव धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, और धीरता, और दिव्य मानव धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। यहाँ तक के इस तरीके से हमको 5 किस्म के लोग, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये मिलते हैं। श्रेष्ठता को हम पहचानते हैं, इन्हीं लोगों का हम अनुसरण करके श्रेष्ठ होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो हम अपने मेंटर्स, अपना गोल तय करें कि हमको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है। ये हमारा लक्ष्य गोल सेटिंग में आ जाता है। ये क्लियर होता है तो हम समृद्धि के, प्रॉस्पेरिटी के साथ रहने के डिजाइन
निकाल पाते हैं। भाभी, कैन वी डू विद दैट फियर ऑफ वेल्थ वाला विद इन, इफ यू परमिट 5 मिनट, जब तक क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमको फियर ऑफ लूजिंग वेल्थ है ना। तो अभी हमको ये समझ में नहीं आता है कि वेल्थ और प्राइड मनी ये क्या है। तो हम मनी की होर्डिंग करते हैं, जबकि मनी किसको कह रहे हैं? करेंसी को। करेंसी इज अ मीडियम टू एक्सचेंज एंड फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। ये रिक्वायरमेंट्स हम कहाँ से पूरी करते हैं? हम नेचर से पूरी करते हैं। आदमी की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आप में एक आलू को बना सके। वो आलू को उगा सकता है, पर आलू में जो मूल्य निहित है, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसको वो इंजेक्शन लगा के, ये लगा के एनहांस कर सकता है, पर उसको ब्रेक, अपने आप में वो आलू कुदरती है, अपने आप में चावल कुदरती है। तो अमूल्य क्या हुआ? नमक। जिस दिन आदमी को आदमी का मूल्य समझ आया तो उसने उसको बेचना बंद कर दिया। नहीं तो पहले मानव मानव को बेचता था, तो उसको बंद कर दिया बेचना, है ना। तो इस तरीके से जिस दिन आदमी को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं, ऑल्टरनेट पे जाना पड़ेगा, तो सोलर एनर्जी है ना, वाटर एनर्जी, ऐसी सब एनर्जीज पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम होर्डिंग किसकी कर रहे हैं? हम पैसे को, मनी को, जो कि पेड़ों से बन के आ रहा है, जिसमें पूरी धरती के पैसे को, करेंसी को इकट्ठा करके जलाएंगे तो एक कप चाय भी नहीं बनेगी। श्री ए नागराज जी इस बात को बहुत मजेदार तरीके से कहते थे, जला के देखो एक कप चाय बनेगी तो बताना। तो वेल्थ क्या है? तो इसमें एक बहुत बढ़िया सेशन होता है कि हम पेट्रोल कितने में खरीदते हैं, वैल्यू वर्सेस प्राइस। सो हम किस चीज की, क्या चीज दे रहे हैं पेट्रोल के लिए? हम पेट्रोल का मूल्य दे रहे हैं कि उसकी कीमत चुका रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा सेशन होता है, क्योंकि ये हम एक्चुअली अभी वी आर नॉट फेस टू फेस, तो हम वो क्वेश्चन या सेशन नहीं कर सकते, पर देखें तो समझ में आता है कि हम एक्चुअली में तो पेट्रोल की कॉस्ट देते हैं, है ना। हम उसकी कीमत देते हैं। कीमत किस चीज की देते हैं? वो नेचुरली हमको अवेलेबल है, अमूल्य है। मानव में इतनी औकात नहीं है कि वो उसको बना सके। और पेट्रोल धरती के अंदर का वो, जैसे मैंने बताया कि पेट का वो हिस्सा है जिसका धरती पे रहना, धरती के पाचन शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। उसको हम जब निकालते हैं, निकाल के प्रोसेस करते हैं, क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होके हम तक आता है, हम उसकी कॉस्ट देते हैं, हम उसका श्रम मूल्य देते हैं, जो श्रम लगा है, मानव का जो श्रम लगा है उसकी कीमत देते हैं हम भी। हम वैल्यूएबल अगर उसको समझेंगे तो हम कभी भी गाड़ियों को उठा के धमा चौकड़ी मचा के घूमना, एंटरटेनमेंट करना, टाइम पास करना, इधर से उधर चेंज के लिए जाना, फिर लड़ाई करना, ये सब नहीं करेंगे। अगर हमको समझ में आता है कि मूल्य क्या है, तो आप सोचिए कि एक एरोप्लेन वो जब 2 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे का सफर करता है, तो आप उसको गूगल करके देखिएगा कि कितने उसके फ्यूल से कितने शहर रोशन हो सकते हैं, और वो कितना कार्बन ये करता है, बाहर छोड़ता है, और क्या उस कार्बन को पचाने की ताकत धरती में है, या पचा जो कार्बन है उसको तो प्राण अवस्था बायो ऑर्डर ही कर सकता है, प्लांट्स ही कर सकते हैं, और जंगल हमने खत्म कर दिए हैं। सो वी हैव दिस कि यहाँ पे हम कैसे जी रहे हैं, इल्यूजन में हमने क्या से क्या कर दिया। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हम, जो पैसा जो हमारे पास है, ये एक मीडियम है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का। तो आवश्यकताओं को समझना जरूरी है। ये समझ डेवलप हो जाए कि मेरी परिवार की आवश्यकताएं कितनी हैं, और उससे अधिक मैं अर्न कर सकूं, परिश्रम कर सकूं, ताकि मैं प्रॉस्पेरिटी के साथ जी सकूं।
तो आवश्यकताओं को समझने के लिए सॉल्यूशन चाहिए, समझ चाहिए, परिवार में कम्युनिकेशन चाहिए, संबंध चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्रीनेस चाहिए, पर्पसफुलनेस चाहिए, तब जाके हम इस पर्पस को फुलफिल कर पाते हैं। तो अब गोल सेटिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें फियर, बिलीव्स, टेम्पटेशंस आ गए थे, और उन टेम्पटेशन को फुलफिल करने के लिए आजकल हम 1 पे 4 फ्री, 3 फ्री, 2 फ्री, खूब सारी होर्डिंग करते हैं, खूब सारा कपड़ा खरीद के ले आते हैं और उससे सम्मान पाने की कोशिश करते हैं हम। तो इस तरीके से हम वो कर तो नहीं पाते हैं, पर हमको लगता है कि अच्छा, हमारा बच्चा बहुत अच्छा सैलरी का पैकेज लेके आया है, खूब बढ़िया है, पर बुढ़ापे में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा घराना है इंडिया का, जिसकी मदर, जिसके पेरेंट्स कोर्ट में चले गए अपने बच्चों के अगेंस्ट में कि इन्होंने हमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है उस पैसे के चक्कर में। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज के साथ जीता हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल सेट करे, जिसको देख के यूथ ये कह सके कि ऐसे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में, ऐसे फियरलेसनेस में, ऐसे ब्लिसफुलनेस में हमको रहना है। तो अगर ऐसा हाइपोथेटिकल लग सकता है, पर ऐसा है। मैंने खुद ने अपने आप में देखा है कि जब दिमाग से शिकवे, गिले, भय, आस्था, प्रलोभन खत्म हो जाते हैं, निरर्थकताएं खत्म हो जाती हैं, तो मेरा जीना इतना मल्टी डायमेंशनल हो गया है, इतनी सारी चीजों को मैं करती हूँ बिना थके। वैसे ही मैंने अपने गुरु को भी देखा, वैसे ही मैं अपने ग्रुप में बहुत से लोगों को देखती हूँ करते हुए, क्योंकि मन से वो सारे बोझ, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, ये जो मिला था जीवन में, जीवन बनने के बाद में आत्मा बनी, तो वो भार बंधन से तो मुक्त हो गई। सेंटर में जो भार था लोहे के परमाणुओं में और बाकी परमाणुओं में, वो भार जीवन परमाणु में नहीं है। वहां पे क्या है? आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। और इस क्रम को जहां से पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये सब हमको मिलेंगे, ये सब हमारे अच्छे के लिए हैं। इन सब के साथ में हमारा जीने का डिजाइन हमको पता लग जाए तो हम कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, हम अपनी ड्यूटीज और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं आराम से। तो इसको हम कहते हैं जागृति क्रम जागृति, इसको हम कहते हैं जागृति क्रम जागृति एंड फुलफिलमेंट दिव्य होके। और इस क्रम में मानव, देव मानव, दिव्य मानव होके हम पुत्र बल, मतलब धरती पे जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे, उनके लिए हम सर्वशुभ के लिए गोल सेट करने में मदद करते हैं। हमारा जीना उनके लिए प्रमाण हो जाता है, और मानव का जो निरंतर धरती पे बना रहना है वो वंश के आधार पे नहीं, संस्कार के आधार पे बना रहेगा। जानवरों का वंशानुषंगीयता है, प्राण अवस्था का बायो ऑर्डर का बीजानुषंगीयता है, पदार्थ अवस्था का परिणाम अनुषंगीयता है, और मानव का संस्कार अनुषंगीयता है। संस्कार से वो अपने जीवन को खुश रख के आगे की पीढ़ी को संस्कार दे सकता है। तो इस रूप में पुत्र बल, धन उदारता पूर्वक जीने के लिए, और यश सर्व शुभ करने के अर्थ में धरती को एक अखंड समाज के रूप में समझ के देखने के रूप में सर्व शुभ के अर्थ में पूरा करता है, और फिर दिव्य होने के बाद में सिर्फ उपकार करता है। ये तीनों से भी मुक्त हो जाता है, पुत्र बल, धन बल, यश बल, इससे भी मुक्त होकर सिर्फ उपकार प्रवृत्ति से कार्य करता है। और ये परिवार में रह के कर सकता है, इसके लिए कहीं जंगल में जाके कुछ समाधि को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मेरा प्रस्ताव है कि ना कोई चक्रों को जागृत करना है, ना घंटों कोई मंत्रोपचार करना है। जो तपस्या है, जो भक्ति है, वो स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के जागृत होने के लिए, स्वयं को भ्रम मुक्त और भय मुक्त करने के लिए है। यस, कैन वी हैव, मैं कंटिन्यू बोलती ही रहूंगी क्योंकि कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड में चलता है। कैन वी हैव क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी? People can write on Facebook also, and if there is any, we can have them here. Can we say that Atma was a particle made of atoms and? Yes, we can say. Was the Atma is a particle, saturated now.
उसमें आदान प्रदान नहीं है, उसमें देना लेना नहीं है। ये एटम पार्टिकल्स में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया है वो कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये। इसमें देयर इज नो गिविंग एंड टेकिंग। जबकि दूसरी जगह पे जब फिजिकल और केमिकल एक्सचेंजेस हो रहे हैं वहां पे एटम पार्टिकल्स बाहर मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, पर आत्मा में ये कंप्लीटनेस है, वो कंप्लीट है, सैचुरेटेड है वहां पे, और वेटलेस है, और उसके पास में अक्षय बल, अनएंडिंग कैपेबिलिटी, पोटेंशियल है ना। अक्षय बल है, अक्षय शक्तियां हैं, और आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन है, उससे मुक्त होने के लिए सारा कार्यक्रम है। वेरी राइटली यू हैव गॉट तुषार बेटा जी। एटम पार्टिकल्स 2, 8, 18, 32। कैन वंदना भाभी जस्ट इफ यू कैन मैनेज टू गेट दैट डायग्राम, आत्मा वाला, जीवन वाला, सॉरी जीवन पुंज वाला। Is it there on your? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। You will have to click a picture from your mobile and probably show it because वो इसमें तो नहीं है। Maybe we can show it tomorrow. Yeah, we can show it tomorrow. Of course, Tushar beta, we can show you tomorrow कि how many particles are there. Atma has got 1 particle inside it, है ना? It is in balance. बुद्धि and आत्मा अप्रभावित रहते हैं, है ना? वृत्ति, सॉरी चित्त, वृत्ति, मन 2, 8, 18, 32, 2, 8, 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे एटम पार्टिकल्स हैं उसमें, और उसमें वो सारी फंक्शनिंग है जो एटम पार्टिकल्स में होती है, पर दूसरे एम के साथ में, because it is got saturated, so it has got different aim to fulfill the existential purpose. Very good. Any more question there? Can we have the takeaways, please? What is the time right now? It is 7:46. Oh, so अभी तो बहुत टाइम है। तो So हम वो भी कर सकते हैं भाभी, कुछ चीजें जो अभी हम फंसते हैं जिसमें प्रवृत्तियां हमारी जी, है ना, हमारी प्रवृत्तियां। सबसे पहले तो हमारी प्रवृत्ति में भाभी एक ब्लैंक स्लाइड लेके आप वहां पे लिख सकते हैं चाहे, या मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, एंड वी कैन शेयर दिस स्लाइड टुमारो, वी कैन कंटिन्यू इट, कि हमारी कैसी प्रवृत्तियां, हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। बोलूं मैं? इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं होगी मानवीय प्रवृत्तियां, तो थोड़ा सा फर्स्ट लेवल ऑफ वर्कशॉप होता है ना। हाँ दीदी, I can write it down. Yeah, you can just write it down. Yes. Yeah, just give me a minute. Yes, sure. Yeah दीदी। हाँ, सो वी कैन राइट कि मानव में जो हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उसमें हम देखिएगा सब यूनिवर्सल है कि नहीं है ये, कि हम विद्या यानी समझदार होना चाहते हैं, या तो हम समझदार होंगे, समझदार होने के 2 पार्ट हैं कि हम साक्षर होंगे, हमारे पास स्किल होगी और हमारे पास समझदारी होगी, सॉल्यूशंस होंगे। तो हम समझदार होना चाहते हैं तो या तो हम समझदार होंगे या हम ना समझ होंगे। दूसरा होता है ना समझ होना, समझदार होना या ना समझ होना। एक होता है संग्रह करना, होर्डिंग्स करना, सॉरी My writing is very bad. इट डजंट मैटर, समझ आ जाए। संग्रह करना,
होर्डिंग करना या प्रॉस्पेरिटी में जीना, मोर देन इनफ। जैसे मैंने कल प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन बताई थी, अभाव का अभाव, लैकिंग द फीलिंग ऑफ लैकिंग। That's really wonderful. It took so many years for me to absorb this, to get sinking, lacking the feeling of lacking, है ना। तो हम लिविंग विथ प्रॉस्पेरिटी, तो पहले में सॉल्यूशंस हो गए, यहाँ प्रॉस्पेरिटी हो गई। थर्ड मानव की प्रवृत्ति जो होती है या टेंडेंसी आप कह लीजिए मानव की, वो रहेगी भय। ये सॉरी भाभी, हमने ना थोड़ा सा इसको कर दिया, ये ना समझ को इधर कर, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। संग्रह के नीचे आप भय कर दीजिए। सॉरी, उल्टा हो गया वो। हाँ हाँ, जर्नी तो नासमझ से शुरू होती है और फिर समझदार होना। समझदार होने में मेरे पास में सॉल्यूशंस पूरे रहेंगे, ताकि मैं अपनी जितनी भी मेरी परिवार में आवश्यकता है और मेरी मन की जो आवश्यकता है, which we have discussed as human in the human definition also, उसको मैं पूरा कर सकूं। फिर संग्रह करना या होर्डिंग्स करता हूं मैं, है ना। और मटेरियलिस्टिक चीजें मटेरियल के साथ में यानी धरती पे छूट जाती हैं और शरीर जो है यहीं रह जाता है, जल जाता है, राख हो जाए, गड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वापस मटेरियल ऑर्डर में चले जाता है, वापस धरती को एनरिच करता है और जीवन अपने पर्पस को फुल करने के लिए फिर से यात्राएं करता है। तो नासमझ, संग्रह करना, भयग्रस्त रहना। भय के 4 प्रकार, भय या फिर हम अभय। अभय यानी विश्वासपूर्ण, भयग्रस्त या विश्वास के साथ जीना, या फिर विश्वास के साथ जीना। इसको हम कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, गेटिंग आवरसेल्फ रिड फ्रॉम द हर्ट ऑफ पास्ट एंड फियर ऑफ फ्यूचर, and now we know the existential purpose, now we know the goal and we fulfill it, and by fulfilling it we do all the duties and responsibilities, fulfilling all the part, है ना। सॉल्यूशंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, दोनों चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए। सिर्फ प्रॉस्पर हो जाए, सॉल्यूशन नहीं रहे तो मन कचोटता रहेगा, भीतर में शांति नहीं रहेगी, थॉट्स एंड जो डिजायर्स है उसमें हार्मनी नहीं रहेगी, मतलब विचार और इच्छा में तालमेल नहीं रहेगा, क्योंकि आशा जो है वो निरंतर सुखपूर्वक जीने की है, कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस के साथ जीने की है। तो विश्वास में जीना या फिर अभिमान, और एक है द्वेष, 5वां है द्वेष। अभिमान नहीं दीदी, भाभी उसको नीचे कर दीजिए, अभिमान को नीचे कर दीजिए, 5th है वो प्रवृत्ति नहीं, अभिमान ये ठीक है, अभिमान वही रहने दीजिए, द्वेष और अब उसके नीचे अभिमान। द्वेष, तो इसमें स्नेह और सरलता आ जाता है। इतना सुंदर है ये चीज कि उसका रिप्लेसमेंट जब हम ट्रांजिट होते हैं, हम समझदार होना शुरू, ऊपर वाला एक करिए और उसके साथ 4 मुफ्त मुफ्त मुफ्त। नासमझी से समझदारी की यात्रा में नीचे के 4 मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इसके साथ में हमारे पास में होते हैं कुछ आवेश, ठीक है, कुछ सम्मोहनात्मक, मतलब कुछ हम कुछ आकर्षित हो जाते हैं कुछ चीजों को लेके, या कुछ विध्वंसकारी यानी डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो ये हमारे कुछ आवेश रहते हैं जिसमें हम क्रोध को कह देते हैं, ठीक है ना। क्रोध हम एक विध्वंसकारी है। मत्सर यानी दूसरे को मार के, दूसरे को खत्म करके खुश होने की इच्छा, ये भी हम विध्वंसकारी डिस्ट्रक्ट में लेते हैं। या मद यानी मेरा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही सीखूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरे को ही सब माने, ऐसी भावना रखना, ये कौन सी चीज हो गई, ये विध्वंसकारी आवेश हो गए। तो ये आवेशों का भी बहुत सुंदर
मल्टीप्लिकेशनरी चेंजेस है, समझ के कैसे कैसे धीरे धीरे ये आवेश, ये मैं अपने भीतर में देखी हूँ, क्योंकि क्रोध को मैंने खत्म होते हुए देखा है। डिस्ट्रक्शन, मैं दूसरे को तो डिस्ट्रक्ट नहीं करती थी, पर मैं अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर देती थी, इसको देखा है। और फिर कुछ जो सम्मोहनात्मक है, सम्मोहन किसको बोलेंगे हम, कि हम किसी की तरफ में अट्रैक्ट हो गए हैं और उसके लिए हम जैसे बिल्कुल पागल हो गए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। तो हम बच्चे के शरीर को जन्म देते हैं कि बच्चे के जीवन को, जीवन तो बन ही गया है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, तो हमने तो सिर्फ शरीर को जन्म दिया है और किसी लक्ष्य के साथ वो हमारे परिवार में आया है। सो वी शुड नो कि क्या लक्ष्य है और उसको हम फुलफिल करने में कर पाए। तो ममता अंधी हो जाती है, तो मोह हो जाता है, प्रिय हो जाता है, हित हो जाता है, तो ऐसे सम्मोहनात्मक हमारे आवेश हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर उसी में हो जाता है कि हम गलतियां करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम मान के चलते हैं, मानना सबका यूनिवर्सल नहीं होता है, उस चक्कर में हम आस्थाओं में, बिलीफ्स में, फेथ में रहते हैं, है ना, हम उस चक्कर में प्रलोभन में चले जाते हैं, टेम्पटेशन में चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों से मल्टीप्लाई होना, हम चेंज होना चाहते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी जीवन में है ही, ऑलरेडी ये चीज हमारे भीतर में है ही, हम इस चीज को कर सकते हैं। सो एनी मोर क्वेश्चंस, या कल हम फियर ऑफ क्या बताया था, फेल्यूर। अब इसमें फेल्यूर और सक्सेस को लेके का जो क्वेश्चन था कल, फियर ऑफ फेल्यूर, तो हम किसी चीज को करने में हम बार बार फेल होते हैं, क्योंकि हमको हमारा पोटेंशियल नहीं पता, हमारी रिसेप्टिविटी और हमारी पोटेंशियल, हमारी पात्रता नहीं पता होती है, तो हम उससे अधिक कमिट कर देते हैं और फेल होते हैं। और फेल होने में क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग इसमें हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारा पोटेंशियल हमको समझना, हमारी पात्रता हमको समझना कितनी है, कैसी है, उसके अनुरूप उसको कैसे पूरा करना है, ये हमको समझ में आना बहुत जरूरी है कि हमारा पोटेंशियल जो है वो कितना है ना। और सक्सेसफुल तो आदमी अपने व्यवहार के थ्रू हो सकता है, जिसमें उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड और स्किल में वो एक्सपर्टीज हो जाए, ताकि अपने परिवार की आवश्यकताओं से अधिक कमा सके और वो समाज में पर्पसफुल हो जाए, यूजफुल हो जाए, या तो शिक्षा संस्कार योजना में काम कर ले। सबको समझदार बनाने के लिए हमारे स्कूल में कोई भी टीचर सैलरी पे नहीं है, 5th क्लास तक सिर्फ महिलाएं पढ़ाती हैं। शिक्षा संस्कार योजना में शिक्षा का व्यापार नहीं होता है, खुशियों का व्यापार नहीं होता है। अभी सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य से है। तो वैसे ही स्वास्थ्य संयम में काम कर सकते हैं, वैसे ही न्याय योजनाओं में काम कर सकते हैं, वैसे ही उत्पादन में काम कर सकते हैं, विनिमय में। तो समाज में जाके ये 5 काम करना, जिसमें मेरा विचार, मेरा उत्पादन, मेरा व्यवहार, मेरा अनुभव, ये 4 आयाम काम आ जाएं, तो समाज में उपयोगी हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं और प्रकृति के साथ तालमेल से सक्सेसफुल रह सकूं। दिस इज सक्सेस। इसमें फियर ऑफ फेल्यूर को हमको ओवरकम करना पड़ता है। बाकी छोटे मोटे फेल्यूर्स की पीड़ा में, गिल्ट में न जाएं, उसको कैसे ठीक करना है इसमें जाएं, तो हमारे अपनी पोटेंशियल पे हमारा काम होता है। व्हाट इज सक्सेस और फियर ऑफ फेल्यूर, ये मैंने आंसर कर दिया है। रिलेशनशिप्स हम कल डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग ने चाहा तो हम कल मन कर सकते हैं। इफ यू वांट तुषार बेटा जी, वी कैन टॉक ऑन मन, एंड अदरवाइज me and my team were discussing that we talk about relationships and we talk about what is the meaning of relationship, what is the meaning of family, what are expectations, ये हम बात कर लें। So today is Wednesday. Is it going to be for 24th, 25th, 26th? हमारा कब तक ये है भाभी? 27 तक है ना? जी दीदी। So tomorrow we can do, if you all say, तो हम थोड़ा सा मन का पार्ट भी ले सकते हैं
और भाभी कल आप वो भी कर सकते हैं डिस्प्ले। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू शेयर कि कल हम सेशन 5 o'clock शुरू करें। अगर आप लोग ना आए तो भी हम चले जाएंगे, लाइव भी जाएंगे और रिकॉर्डेड वर्जन फेसबुक में और यूट्यूब में भी रहेंगे, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, क्योंकि कल हम 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे। आई हैव टू बी फ्री बाय 6:30, so we can start at 5 o'clock and finish by 6:30. yes जो बेटा जी बाद में ज्वाइन करेंगे या तो जितना सुन पाए उतना सुन लेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो रहेगी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दे कैन कैच अप फ्रॉम देयर and then we can meet, and if they have any questions we can take them up on day after tomorrow. yes Yeah. of course. Thank you Didi so much for today's session. आज का टेक अवे कुछ बता दे, कितना बचा हुआ है, टाइम क्या है, थोड़ा सा जल्दी से टेक अवे हो गया है, बट हाँ हमने जो आज डिस्कस किया था कि हाउ टू बी अलर्ट, दैट इज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। फिर चारों अवस्थाएं हमने देखी and how they are complementary to each other except for the knowledge order, that is the human being. We are just taking from plant order, material order and animal order, but are we giving back to them, even if not in the same ratio, but are we actually giving them back or not? Then same as was happening with the family and the society and the material, the systems जो हमने बनाए हैं उसमें हम कितना दे पाते हैं, अपनी कितनी भागीदारी कर पाते हैं, उस पर बात हुई। Then what should be our vision? न्याय धर्म सत्य का विजन होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मानव हमने डिस्कस करे, पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, देव मानव और दिव्य मानव। Then we discuss what is price and what is value. हम कुछ भी खरीदते तो हमें लगता है हमने उसकी प्राइस दिया है तो हमने उसका वैल्यू दिया है, बट वी हैव टू थिंक कि व्हाट आर वी गिविंग, आर वी जस्ट गिविंग द प्रोसेसिंग थिंग or are we giving the actual value? Actually we cannot give the actual value of anything. That is what we need to understand. तो हमें ना समझ बनना है कि समझदार बनना है, संग्रह करना है या प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना है, भयग्रस्त रहना है कि विश्वास के साथ जीना है, अभिमान के साथ जीना है कि स्नेह के साथ जीना है, और द्वेष में जीना है या सरलता के साथ जीना है। हमें अपना पोटेंशियल को समझना जरूरी है, और सक्सेसफुल हम अपने व्यवहार से हो सकते हैं, नेचर के साथ रह के हो सकते हैं, समाज में यूजफुल होंगे तब हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन सब बातों पे आपने आज डिस्कशन किया। Thank you so much. Thank you everybody for being there with us. Thank you so much to my team. Thank you so much to my mentor who has given this philosophy and the potential that I have invested on myself. I've invested my energies on myself कि मैं इस चीज का, इस philosophy का इतने सालों तक अध्ययन करी, जी और उसके फैमिली में, अपने और सोसाइटी में उसके रिजल्ट्स दे रही हूँ, देख पाती हूँ, and I'm participating with my team in transforming this knowledge to the new generation. Thank you so much. Thank you so much, Bhaiya and Bhabhi. Thank you. Thank you. Thank you so much, children. For Thank you, Didi. teaching this. Thank you. Tomorrow 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. Yes, Didi. Tomorrow 5 p.m. Yes. All right. 5 to 6:30. Yeah. Okay.